helpful for me that if parents can switch on their videos, because I can only gauge how the session is progressing by seeing your verbal expressions, by seeing your expressions. Unless and until कोई इमरजेंसी है जिसमें आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, इट विल बी ऑसम दैट इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस. ग्रेट. सो वीडियोस ऑन रहेंगी तो सही रहेगा. एंड अबव ऑल will be, give me a minute, yeah. So I can still only see a couple of videos. I think we are starting now. So very good afternoon to all of you. Very good afternoon to all of you. आप settle down हो चुके हैं. I think most of us, you guys know me well. And this is Sahil Khanna. And today's session is, I have been waiting to conduct this session from last 1 year or so. Every year, this is an annual kind of a thing which we do at Genesis. And why do we do it? क्या agenda है? By the end of the session, you'll get a lot of clarity about it. So हम we would, yeah, ma'am. So what we would do is we would use, मैं language को a mixture of Hindi and English रखूंगा. So can we can do a better connection. अगर किसी point पे आप लोगों को लगता है मैं ज़्यादा इमोशनल होकर ज़्यादा इंग्लिश झाड़ने लग गया हूँ, so you can personally drop me a message on the chat is a medium through which we'll communicate. Once I'm pretty sure that all of you are the parents of the students, because online session में बहुत सारा hiccups हो जाते हैं. Then during the Q&A round, when we will give you a chance to ask, I'll allow you to ask by unmuting yourself, but that will happen at the later part of the session. सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू. मेरी आई थिंक बच्चे पता नहीं किस पे चले गए हैं. आप लोग भी बच्चों की तरह, कई बच्चों की तरह जिद नहीं छोड़ रहे, वीडियोस ऑन नहीं कर रहे हैं. सो मेरे पास नाम आप लोगों के आ गए हैं जो ऑन नहीं कर रहे हैं. सो आई माई टीम इज मेकिंग द लिस्ट. सो हम अगली पीटीएम पे आपकी शिकायत आपके बच्चों को लगाएंगे डेफिनेटली. ठीक है. सो we'll keep it very simple as always. We'll keep it very simple. We'll keep it very humble. We'll keep it very honest. And this is I want to start with a very small story, and this is where we begin today's session. Very good afternoon to all of you. I'll keep on reading my team is in the session, so they'll keep on reading the messages on the chat. So whenever something important comes up, they'll send me and I'll answer that straight away, or we'll answer this concern. And I'm sure there'll be a lot of concerns at the end of the session, or probably in the middle of the session. Okay. So let me just start now. आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? So I'm counting upon Prisha's mother, Pankaj ji, Rudransh, Yes. Kamak's mother, Khushbu Kumari ji. These guys are my eyes for the today's session. Rest आप सबसे कट्टी है. So no, अब बहुत सारी वीडियोस ऑन हो गई हैं. This is awesome. So आप just a nod will help me. आप ये I've shared a picture with you. Can you all see? आप देख पा रहे हैं जो मैंने पिक्चर शेयर किया? Awesome. सो लेट मी जस्ट टेल अबाउट दीज गर्ल्स. ये दो लड़कियों ने दे जॉइन जेनेसिस इन 2022. They were three friends, and I want you to listen to this with all your heart. There were three friends. They joined Genesis in 2022 from Dharamshala. They came, and they came via some NGO. So the history says the history was that कि they were studying in a बहुत लोकल काइंड ऑफ स्कूल में पढ़ते थे. एक साइन विद्या स्कूल्स होते हैं जो जो बच्चों से फीस नहीं लेते हैं. सो ये तीन लड़कियां, देयर आर टू ऑफ देम इन दिस पिक्चर. इशिका, प्रीति, यू कैन सी देयर वाज वन मोर, सोनाली. ये तीन लड़कियों ने जेनेसिस ज्वाइन किया थ्रू एन एनजीओ. एंड हम लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया. 50% फीस वाज बोर्न बाय जेनेसिस एंड 50% वाज गिवन बाय द एनजीओ. सिंस वो एक ऐसे बैकग्राउंड से थी बच्चियां जहाँ पे द लैंग्वेज मीडियम टिल 10th वाज मोर और लेस हिंदी. ज़मीन पे पढ़ने वाला स्कूल था. So initially when they joined for the NEET, and the target was NEET 2024. So when they joined, it was very difficult for us also, for my team also, for a very simple reason कि जो लैंग्वेज बैरियर था, जो बेसिक फंडामेंटल्स होने चाहिए एक इंसान के to start 11th and 12th, and that too a medical stream, and that too aspiring to be a doctor or cracking NEET or be a
cracking a government college seat. So things were very difficult. So journey शुरू हुई. स्कोर्स वर वेरी डाउन, स्कोर्स नहीं आ रहे थे. स्कोर्स की बात तो चलो सेकेंडरी है. प्रॉब्लम इतनी थी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी. टीचर्स जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे जेनेसिस में, और जो लैंग्वेज इनको कंफर्टेबल थी, वो बहुत मिसमैच था. बट दे नेवर गिव अप. They worked very hard. They were staying in an hostel again sponsored by NGO. बहुत मेहनत करती थी लड़कियां. 9 to 2 वाली सुबह क्लासेस लगाती थी जेनेसिस की. दे यूज टू गो बैक होम. 8 8 9 9 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो उनका स्कोर्स आ रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, when we used to have our internal discussions amongst this team कि क्या होगा, we were also very apprehensive. And मुझे कहीं ना कहीं as a an educator, honestly, to be very honest, मुझे भी लग रहा था यार शायद इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होने नहीं वाला. मुश्किल लग रहा है, मुश्किल मतलब. सो जो कंसर्न एनजीओ के अथॉरिटी थी, आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद हिम कि अभी क्या स्टेटस है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ गैप्स है. सो वी काइंड ऑफ वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि इनका नहीं होगा. बट बोथ ऑफ देम are have cracked a government college this year 2024, first attempt. And they were three best friends. Two of them, the two girls that we can see, cracked the same college coincidentally in Moradabad MBBS, in the medical college. Sorry. The third girl also, I got to know that in the last round of counseling, she has also got a seat in the government college. Sonali is her name, but not in MBBS, but she has got a seat in BSc, B Pharma something, again a government seat. Now, when I look back, and again request all of you, अगर आपने you've just joined, please request the parents only to attend this session. The students are not, because I can still see a couple of students इधर-उधर भटकते हुए. Only the kids should, the parents should attend this session. Coming back to these two amazing girls. So, in spite of everything against them, everything, in spite of the what do we say? In spite of a very average family, humble background, I would say, in spite of uh, not being under language barrier, a new place barrier from a place like Dharamshala, a remote area of Dharamshala, not the main city. वहां से उठ के चंडीगढ़ जैसी जगह आना, हॉस्टल लाइफ में आना, और हमारे जैसे बच्चों के बीच में बड़ा होना, जिन जो आईफोन, एंड्रॉइड्स, बेस्ट ऑफ क्लोथ्स के बीच में पढ़ना, एंड बेसिक इंग्लिश समझना आना, फ्रॉम दैट टू व्हाट दे हैव अचीव्ड is nothing short of a story of absolute resilience, determination, courage, and a story of self belief. And why I'm sharing this story with you is uh, because of a very simple reason that एक मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन कराता हूं, एंड देन इट विल मेक मोर सेंस टू ऑल ऑफ यू. इमेजिन करते हैं एक बहुत बड़ी सीढ़ी है. सो इमेजिन दिस इज अ स्टेयर. ये एक सीढ़ी है, जो जो एक बेसिक लक्कड़ की सीढ़ी है, जिसपे हमने देखा होगा कारपेंटर्स वगैरह चढ़ के काम करते हैं, बिजली वाले भैया काम करते हैं. इमेजिन वो एक बहुत लंबी सीढ़ी है, बिकॉज वो एक बहुत 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 ऊंची दीवार के साथ खड़ी है. सो इमेजिन एक वॉल, जो बहुत 10, जो आपको वॉल अपने रूम में भी दिख रही है आसपास, उसको 10 गुना बड़ा कर दीजिए, आप 20 गुना बड़ा कर दीजिए. और एक लैडर, एक सीढ़ी ऐसे लगी हुई है, इंक्लाइंड, और आपका बच्चा वो सीढ़ी चढ़ रहा है. अर्नब वो सीढ़ी चढ़ रहा है, प्रशा वो सीढ़ी चढ़ रही है, तेजस वो सीढ़ी चढ़ रहा है, प्रथम वो सीढ़ी चढ़ रहा है. एंड हम देखते हैं वो बहुत मेहनत से वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक स्टेप चढ़ते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं. एंड इवेंचुअली बहुत सारी मेहनत करके फाइनली वो सीढ़ी के टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां पे उनको कुछ चाहिए था. ऑब्वियसली बंदा सीढ़ी कब चढ़ेगा, जब उसको कुछ चाहिए, वो उसको दिख रहा है, शायद उसको पता है कि वो वहां पड़ा है, उसको लगता है वो वहां पड़ा है, तो मैं वहां जाके मेहनत करके वहां जाके वो चीज ले लूंगा. वो बहुत मेहनत करके हमारा बच्चा वो सीढ़ी चढ़ता है, टॉप पे पहुंचता है, और वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि वो जो सीढ़ी थी, वो गलत दीवार के साथ लगी हुई थी. The ladder was leaning against the wrong wall. As a parent,
हाउ वुड यू फील एज अ चाइल्ड? आई एम सेइंग एज अ पेरेंट हाउ वुड वी फील। आई एम नॉट सेइंग कि हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। पेरेंट्स बहुत एक, आई आई बिलीव पेरेंट्स आर सुपर हीरोज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन दैट, फॉर बिकॉज अब जैसे जैसे मैं पेरेंटिंग में खुद पेरेंट बना हूं और बड़ा हो रहा हूं एज अ पेरेंट, सो आई कैन प्रॉब्ली रिलेट दैट हमसे बड़ा सुपर हीरो इसलिए क्यों नहीं है, बिकॉज हम लोगों की कोई भी कंडीशन, हम लोग किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, व्हेन इट कम्स टू आवर किड्स, वी हम एक अलग ही रूप, अलग ही कैप पहन लेते हैं, सुपर हीरो कैप, कि बच्चे को नहीं पता लगना चाहिए। सो वो सीढ़ी पे बच्चा बहुत मेहनत किया, आपने देखा बच्चे ने बहुत मेहनत की, एंड यू सी द at the top of the ladder, he or she was lean the ladder was leaning against the wrong wall. This is the agenda of our today's session. आज के सेशन का यही एक नंबर वन, दो एजेंडास हैं। नंबर वन इज दिस, that together we have to ensure and unconditionally we have to ensure that our students, my students, the Genesis students, your kids, ladders should not be leaning against the wrong wall. बिकॉज अगर मैं इन दो लड़कियों की स्टोरी पे वापस जाऊं, एक चीज उनके दिमाग में, जहन में बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर थी जब वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड वो क्लैरिटी वो लेके आई थी वहां से, सर करना है तो मेडिकल करना है, और कोशिश तो पूरी करनी है कि एमबीबीएस या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट निकालनी है। वो क्लैरिटी थी। सो हो क्या रहा था, जब वो सीढ़ी चढ़ रही थी 2 साल की रिगरस मेहनत वाली सीढ़ी, तो वो बहुत बार गिरी, उठी, कई बार हमने उठाया, कई बार वो खुद उठी, लेकिन क्योंकि दिख रहा था टॉप पे जो चीज पड़ी, हम उसी के लिए बने हैं, तो गिर के उठना बहुत आसान हो जाता है। So we need to assure that together, and I'm absolutely crazily humbly with all of you in this, but provided आप सुनो जो मैं समझाऊं, बिकॉज हर साल मैं ऐसा एक सेशन जरूर करता हूँ, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगा उस सेशन के आउटकम्स क्या आते हैं। और कई बार बहुत समझाने के बाद भी पेरेंट्स बेचारे जिद्दी हो जाते हैं। तभी मैंने बच्चों आपको रिक्वेस्ट की कि बच्चे साथ नहीं होने चाहिए, बिकॉज सो दैट हम हार्ट टू हार्ट बात कर सकें। सो दिस इज वन एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन, कि हम बात करेंगे फ्यूचर की। और एक और एजेंडा है जो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की। दिस एजेंडा इज ऑन द एंड यू नो दैट किड्स लव मी। सो आपको आज पता लगेगा व्हाई दे लव मी। सो द सेकंड एजेंडा इज दैट प्रेजेंट, सर प्रेजेंट के बारे में थोड़ी जरूर बात कर लेना, बिकॉज हमारे पेरेंट्स थोड़े से आजकल नेक्स्ट जोन में चले गए। सो हम दो बातें करेंगे प्रेजेंट, 10 प्रेजेंट पे, लाइक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, घर का माहौल क्या होना चाहिए, उस पर मैं पहले 10-15 मिनट लगा देता हूँ, बिकॉज दैट आई विल टेक लेसर टाइम ऑन दिस, बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। And then I'll move to the ladder. Will continue with that ladder kind of a thing. You can make your notes if you want to. Though I'll still share the record. My team will share the recording with all of you. तो सबसे पहले बात करते हैं, 2024 चल रहा है, दिसंबर, आज 8 दिसंबर है। ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू हैव आवर एग्जाम्स from somewhere 15 to 20th of February. We are approximately left with roughly around 60-65 days, और ऑन द टॉप ऑफ इट प्री बोर्ड्स शुरू होने वाले हैं, कईयों का टॉर्चर जारी है, सीबीएसई वाले स्कूल जो थोड़े से, आई वुड से, एंड पार्डन माई लैंग्वेज, बट मैं इमोशनली और कनेक्ट करता हूँ तो मैं लैंग्वेज भूल जाता हूँ। सो कुछ सीबीएसई के स्कूल्स हैं जो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 ले रहे हैं। ICC, I still believe most of the schools are a little more sensible in this regard, that they'll take at least one pre-board decently, maybe one and a half pre-board. Like Xavier's is taking one and a half kind of a pre-board, science and maths का paper भी ले रहे हैं 2 बार, and rest subjects 1 बार. That still makes sense. So अब आपका क्या रोल है? आपका मतलब एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल होना चाहिए? अगले पहले मैंने आपको मैं क्लियर किया, जिन अभी कुछ पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, सेशन को हम दो पार्ट्स में कर रहे हैं। पहले 15 मिनट का सेशन इज अबाउट द नेक्स्ट 2.5-3 months, which are again damn crucial, and the next is the next 2 years, which are crazily life changing crucial. फर्स्ट पार्ट, मैं ये कहता हूं कि यार मुझे पहले 2-3 चीजें समझनी है। अगर मेरा बच्चे ने, मैं आपको एज अ पेरेंट मुझे क्या सपोर्ट करना है, एंड मुझे अकाउंटेबल कहां बनाना है।
अकाउंटेबिलिटी की बात सबसे इंपॉर्टेंट इज दैट आपको एज अ पेरेंट, मैंने पहले भी जितने भी सेशन हमने लिए या जितने भी पेरेंट्स मुझे जानते हैं सुनते हैं, इज नंबर वन इज दैट जो मर्जी हो जाए आप दुश्मन बन जाओ उसके, आपको वो आपसे बात ना करे, आपसे वो लड़ ले, एक दिन दो दिन एक आधी मील स्किप कर ले, अगर हम उसका, नंबर वन इज दैट यू हैव टू वी हैव टू इंश्योर दैट द स्क्रीन टाइम इज नॉट क्रॉसिंग more than 45 minutes per day and it can only be maximized till 1 hour. अगर आपको बहुत क्लियर है, अगर आपको हमारा बच्चा, मेरा हमारा बच्चा भी यहाँ पे जेनेसिस के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, अगर जेनेसिस का बच्चा आपको ये बोल रहा है कि मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, हम उसको फिलहाल कुछ अलाउ नहीं करेंगे ऑनलाइन पढ़ना, एक्सेप्ट, मैं अपने आपके सारे डाउट्स क्लियर करता रहूंगा, एक्सेप्ट हमारा जो जेनेसिस पे इम्बाइब टेस्ट, जेनेसिस इम्बाइब एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, दैट ऑल्सो हैपन्स 2 और 3 टेस्ट, अब हमने इस महीने थोड़े से बढ़ा दिए बिकॉज एग्जाम आ रहे हैं, 2 और 3 times इन अ वीक एंड दैट द टेस्ट ड्यूरेशन इज ओनली 1 hour. आई रिपीट, जो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं वो ऑनलाइन 1 घंटे की सिर्फ ड्यूरेशन है, और मैं ऑनलाइन क्यों ले रहा हूं मैं वो भी आपको बताऊंगा, कुछ टेस्ट ऑनलाइन क्यों लिए जा रहा है, आई शेयर समथिंग दैट यू विद यू व्हाई वी आर टेकिंग इट, बट आई रिपीट, स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल रखना बहुत 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 जरूरी है, मतलब इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्क्रीन टाइम आउट ऑफ हैंड गया, रिजल्ट से ज्यादा करियर आउट ऑफ हैंड चला जाएगा. Brilliant students end up not cracking anything in life just because in my last 5 years, if I see post COVID 2019 to 24, if I see the last 5 years, I've seen brilliant kids screwing their life, spoiling their life just because of one this gadget, and this is creating absolutely havoc. In fact, if you see 2024, the word of the year, वर्ल्ड में जो द वर्ड ऑफ द ईयर हैज बीन लॉन्च, उस वर्ड का नाम है ब्रेन रॉट. Brain rot, BRAINROT. It's a condition where every human being on earth is becoming gradually unproductive day by day because of the excessive use of technology and screen time. So coming back, so one, this is where you have to take control of it. Now what we need to understand is that, and I want you to understand this. मेरा बच्चा मान लेते हैं आज 75% पे, मैं एक जनरल 75-80% पे, कुछ उससे कम है कुछ उससे ज्यादा, मैं एक एवरेज फिगर आउट लेके, और आप यहां पे आपको समझना जरूरी है यार, वो कहता है उसके प्री बोर्ड अभी एग्जाम है, मान लो 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, हफ्ते बाद, जो भी एग्जाम है प्री बोर्ड से, अब अगर उसका, आपको लगता है, आपको मीन बच्चे को लगता है, और बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ पता लगेगा, कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक्स सब्जेक्ट ले लिया जिसमें टोटल एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर हैं मान लो, अब वो 20 चैप्टर मान लो उसने पूरा साल इतनी, मतलब इट कुड बी सब्जेक्ट शायद वो जिसके लिए जेनेसिस नहीं आता, मे बी सब्जेक्ट लाइक SST, मे बी हिंदी, अ नॉन काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, एंड हमें ये लगता है कि वो 20 चैप्टर्स अगर कोई भी बच्चा सैनिटी से करे उसको 20 चैप्टर करने में टाइम लगेगा, थरोली करने हैं, और थरोनेस बहुत जरूरी है बिकॉज बोथ CBSE एंड ICSE बोर्ड एग्जाम्स will have shifted from a lot of ratta base to a lot of competency based questions. अगर आप देखो पैटर्न ऐसे ऐसे यू शिफ्ट किया इन्होंने, यू टर्न किया, एंड कम्पिटेंसी बेस्ड कहता है, अगर आप इस बार के पेपर्स भी उठा के देखो जो सैम्पल पेपर आए, वेरी गुड पेपर्स. अभी मैं परसों ICSE के जो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड की किट निकाली है सब्जेक्ट वाइज, एंड इट्स डैम 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 इंपॉर्टेंट, डैम डिफिकल्ट, बहुत अच्छी चैलेंजिंग लेवल की किट निकाली. आई वाज डिस्कसिंग विद द किड्स आल्सो कि यार मजा आ गया, लेवल ऑफ क्वेश्चंस has been raised from this to this. एब्सोल्यूट क्लियर नॉलेज होगी तो बच्चा पेपर अच्छा कर पाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा कर पाएगा. तो कमिंग बैक, सो अगर मैं ये कहता हूँ मेरा बच्चा को, मैं ये कहता हूँ मेरे को, तेरे को प्री बोर्ड में नंबर, एंड फाइनल वार्निंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बच्चा अभी सेशन में, इस पार्ट ऑफ सेशन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्लीज उसको भेज दो यार, नहीं तो ये आपको हॉन्ट करेगी चीजें, मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आ गया हूँ ना. अगर अगर मैं अपने बच्चे को ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये गाना गा रहा हूँ घर पे एज अ पेरेंट, प्री बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे तो स्कूल में एडमिशन नहीं होगी, प्री बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे तो स्कूल में एडमिशन नहीं होगी, प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्री बोर्ड. अगर मैं एज अ पेरेंट ये गाना गा रहा हूं तो आप, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हम ये गाना आज से गाना बंद करेंगे. अगेन आई एम नॉट सेइंग प्री बोर्ड आर नॉट इंपॉर्टेंट, हम सही गाना गाएंगे, उसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ. मैं, सो वी हैड लास्ट ईयर
more than 30-35 students who scored above 95% in 10 board exams. ठीक है, तो ये historically touchwood God is being very kind, we are able to do this kind of results. Now मैंने क्या किया, तो लास्ट आप इस सेशन से पहले मैंने क्या किया, मैंने लास्ट 4-5 सालों के जो बेस्ट बच्चे निकले हैं अबव 90%, 93%, उनका 10th के प्री बोर्ड्स का स्कोर अपने पास हम लोग ट्रैक रख लेते हैं, रिलेटिव कहीं ना कहीं हम एक एंट्री रखते हैं कि कितना जंप होता है। तो वो मैंने लास्ट 4-5 साल का आपके इस सेशन को कंडक्ट करने से पहले मैं कल बैठ के उसको देख रहा था कि ट्रेंड के, एंड यू वुड बी वेरी सरप्राइज, एंड आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी शॉकिंग ट्रेंड, दैट जो बच्चा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चा अपने पास, आई थिंक वी ऑल नो नीव, ही इज इन ग्रेड +1 राइट नाउ, उसका स्कोर 99.2 था लास्ट ईयर 10th आईसीएसई बोर्ड में, ही वाज रैंक 1 in across Tri-City. He also scored somewhere around 87 to 88 percentage in pre-boards. Now, I got into more details. Most of these kids का शूटअप लगा था, स्कोर शूटअप हुआ था एटलीस्ट 10%, कईयों का 20% भी हुआ था। सो पैनिक सिचुएशन नहीं है, पैनिक करने के तो, अगर पैनिक करना तो हम पैनिक किसी भी बात पे कर सकते हैं, बट पैनिक मैंने तभी बोला बच्चों को हमने बाहर इसलिए भिजवाया बिकॉज अगर ये बात बच्चों को पता लगेगी तो वो आपको आप ही के अगेंस्ट इसको एज अ वेपन यूज करेंगे कि साहिल सर ने बोला था ना हम नंबर कम आ जाएंगे चलेगा। हम ये नहीं बोल रहे नंबर कम आना एक्सेप्टेबल है, हम ये बोल रहे हैं तैयारी की पीछे स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूँ आजकल, कि यार एक काम करते हैं, और मैं चाहता हूं आप भी यही बातें बोलो बिकॉज अगर हम और आप मिलकर सेम बात करेंगे तो फीड सेम जा रही है। स्ट्रैटेजी मेरे बच्चे की ये होनी चाहिए, एक एक समझदार बच्चे की, कि यार मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट है जिसमें तेरे को 20 चैप्टर आने हैं, कमिंग बैक टू द सेम 20 चैप्टर, और आज तेरे को 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर्स तेरे थरो हैं। अब तेरा 15 दिन बाद 10 दिन बाद पेपर है और तूने बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, ध्यान समझना ये बात प्लीज। तो अब अगर तू 20 के 20 चैप्टर, जनरली बच्चे क्या करते हैं प्री बोर्ड्स के लिए सारा सिलेबस करके जाने की कोशिश करते हैं। अब वो जो वो सारा सिलेबस करके जाएगा, एक सिंपल कॉमन सेंस कहती है कि अगर मेरी आज तैयारी यहां पे है और मुझे सारा सिलेबस करना है और मुझे सारा सिलेबस थरोली करना है, तो थरोली इतने दिन में इतने चैप्टर सारे सब्जेक्ट के नहीं हो सकते। आप एग्री करते हैं मेरे साथ यहां तक? आप मेरे साथ एग्री करते हैं? ऑसम। तो अगर मेरे को, मैं क्या सिखाऊंगा बच्चे को कि यार एक काम करते हैं, तू मिनिमम 80%, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 80% सिलेबस पकड़ ले। मैक्सिमम तेरे अभी प्रेजेंट लेवल पे डिपेंड करता है, कोई बच्चे अच्छे तो वो 100% भी करेंगे, 95% भी करेंगे, बट मिनिमम यार तू एक काम कर 81 चैप्टर्स पकड़ ले, यानी कि तू एक काम कर 15 से 16 चैप्टर उस सब्जेक्ट के पकड़ ले। 4 तेरे को ऑलरेडी आते हैं, तेरा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम 14-15 चैप्टर्स करके जाने हैं, बट उन 14-15 में इतनी थरोनेस चाहिए, इतनी थरोनेस चाहिए, इतनी थरोनेस चाहिए कि अगर उन चैप्टर्स में से 80 मार्क्स में से 68 मार्क्स का या 66 मार्क्स का पेपर आता है, तो उन 66 मार्क्स में से तेरे एटलीस्ट 62-63 आने चाहिए। अब इससे समझो क्या होगा, प्री बोर्ड खत्म हुए, बच्चों को शीट्स मिली, बच्चों ने शीट्स देखी, आपको मार्क्स मिले, आपको पता है एक सब्जेक्ट था जिसमें, और ये कॉन्फिडेंस में बच्चा आपको लेगा और आप उसको ये कॉन्फिडेंस दोगे, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे देना है। अब आपको पता है, अब अगर जॉनथन के मम्मा सुन रहे हैं सेशन, अब जॉनथन के मान लो एक सब्जेक्ट में 80 में से 61 नंबर है फॉर एग्जांपल, विच विल बी वेरी वेरी गुड फॉर हिम एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और उसने 66 मार्क्स का पेपर वो था जो वो उन चैप्टर्स में से आया जो वो करके गया था थरोली। ना जैसे प्री बोर्ड खत्म होंगे, अब बहुत ध्यान सुनना ये बात, आपको एज अ पेरेंट, उससे भी छोड़ दो, बच्चे को एज अ चाइल्ड हु इज प्रिपेयरिंग, ही एग्जैक्टली नोज कि उसने प्री बोर्ड के बाद बोर्ड के बीच में क्या, कहां फोकस करना है, कहां फोकस करना है, वो 4 चैप्टर्स पे फोकस करना है जो वो छोड़ के गया था या थरोली नहीं कर पाया था। ऊपर ऊपर से करने का क्यों फायदा नहीं होगा, आप समझो। अगर वो ऊपर ऊपर से सिलेबस करके जा रहा है, उसने 20 चैप्टर कर लिए, रात को पूरी रात पढ़ता रहा, ऊपर से रट्टे लगा लिए कि सिलेबस छोड़ के नहीं जाऊंगा, प्री बोर्ड खत्म हुए, सारा सिलेबस ऊपर से करके गया था, स्कोर अभी भी वही आएगा 62, 63, 58, 55, 80 में से। अच्छे बच्चों की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे बच्चे होते थे। प्री बोर्ड 1 खत्म हुए, प्री बोर्ड 1 खत्म होने पे उसने मेहनत भी करी, आप भी देख लो बच्चों ने सडनली थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी है, फोकस भी हो गए हैं बच्चे बेचारे, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा बहुत चीजें मैनेज करने का।
अब बच्चा प्री बोर्ड वन के बाद चाहे 60% पे खड़ा है, 70 पे खड़ा है, 80 पे खड़ा है, 85 पे खड़ा है, उसको ये नहीं पता। ध्यान समझना, दो चीजें। पहला, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया अभी तक। क्यों? क्योंकि उसने जो चीजें पढ़ी वो शॉर्ट टर्म गजनी की तरीके से पढ़ी। अभी याद किया, आज वो आज कर लिया, आज कर लिया, आज कर लिया, कल कर लिया, कल कर लिया, परसों पेपर दे दिया, क्योंकि थर्ड प्री बोर्ड के लिए पेपर देना था, पूरा सिलेबस कर लिया। तो ही और शी इज नॉट कॉन्फिडेंट, नंबर वन। एंड दैट्स अ वेरी स्केरी सिचुएशन। नंबर टू, नंबर टू, जब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, चलो वो भी हो गया। सेकंड चीज इज दैट उसको यही नहीं पता प्री बोर्ड वन देने के बाद जो भी मेरा स्कोर आया उसको इंप्रूव कैसे करना है। बिकॉज उसने अपने तरीके से सब कुछ कर लिया, उसने अपने पर्सपेक्टिव से सब कुछ कर लिया प्री बोर्ड वन के लिए या प्री बोर्ड के लिए। तो उसको एक एक तरीके से उसने, और आपको ये लगेगा वो सारी तैयारी कर चुका है ना, तैयारी कर ली, वो थरोनेस नहीं थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। प्री बोर्ड वन और बोर्ड के बीच में जो गैप होगा, या प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में जो गैप होगा फाइनल प्री बोर्ड में, बच्चे को यही नहीं पता क्या करना है। शैल आई डू, या आप समझो, शैल आई डू 10 ईयर पेपर्स, शैल आई डू माई बुक्स अगेन, बिकॉज कॉन्फिडेंस तो बुक्स पे भी नहीं आ रहा। Shall I revise through notes? Shall I revise through back exercise? Shall I revise my pre-board question papers? That's going to be a very, very challenging. That's why score generally उन्हीं बच्चे का बढ़ेगा जिसको ये एब्सोल्यूट क्रेजीली क्लैरिटी है दैट दैट या जितना करके जाऊंगा उसमें फोड़ दूंगा, उसमें नंबर नहीं कटवाने दूंगा। जो छूट गया उसको प्री बोर्ड वन या प्री बोर्ड के बाद बोर्ड के बीच में 10 दिन में खत्म करके फिर मैं 10 ईयर के पेपर करूंगा। 10 ईयर के पेपर्स कब करने हैं? बहुत सिंपल है। अगर मैं बच्चों को भी ये बोलता हूं सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज, अगर किसी चैप्टर की थरोनेस नहीं है, मैं आपको बारी बारी बोल रहा हूँ, पैटर्न एग्जाम्स का बहुत चेंज हो गया, पेपर आसान नहीं आने वाले। रट्टे वाला सिस्टम धीरे 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 आफ्टर एनईपी 2020, और जो अब धीरे धीरे इम्प्लीकेशन में आ गई है, पेपर्स का लेवल मैं आपको बारी, मैंने खुद पेपर्स देखे हैं फिजिक्स के इस बार, बहुत प्यारे पेपर आए हुए हैं, सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें ये करना है कि हमें वो उसको कॉन्फिडेंस देना है अपने बच्चे को, आज, कल, परसों, कि यार तुझे क्या लगता है प्री बोर्ड में कितना स्कोर ला सकता है अगर तू पूरी मेहनत करे, बेस्ड अपॉन द चैप्टर्स यू नो एंड हाउ हाउ मच यू कैन एलिवेट देम। लेट्स हैव रियलिस्टिक टारगेट्स, लेट्स डोंट हैव अनरियलिस्टिक टारगेट्स। आई बी वेरी ऑनेस्ट ना, यहीं पे कई पेरेंट्स का यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा, सर व्हाट अबाउट एडमिशन इनटू गुड स्कूल इन 11 12? मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, आई क्लैरिफाई इट आल्सो, दो ये मेरा लेटर पार्ट का था, बट मैं यहाँ पे क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कईयों के डाउट्स आ रहे होंगे। एक मिनट में कुछ chat, हाँ जी। नंबर वन इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे schools मोस्टली धीरे धीरे have have are focusing, I'm talking about commerce and humanities aspirants right now, have now started taking their own admission test after 10th board examinations, to have their own system of testing कि भैया हम admission देंगे। Most of them have gone to from that mode, like Kabir, Bhavan, they have their own test for commerce and humanities for every stream, but for I'm talking about right now commerce and humanities, क्योंकि उनको स्कूल, उनके लिए स्कूलिंग बहुत जरूरी है। जो बच्चे 11 12 में कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लेंगे उनके लिए स्कूलिंग बहुत जरूरी हो जाती है, तो उनका अपना टेस्ट होना है। नाउ सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेडिकल नॉन मेडिकल की स्कूलिंग को मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। सो ये पैनिक करना इस स्टेज पे सही नहीं है कि बच्चा पूरा सिलेबस करे, बट ये आपको उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है कि यार मेरे को तेरे सिस्टम सही चाहिए, मेरे को तेरा मेथड सही चाहिए। मेथड सही का मतलब तो मोबाइल कम से कम चलाएगा। अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे ना बच्चा सेल्फ स्टडी मोड में आएगा। तो सेल्फ स्टडी मोड में क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना बहुत कम कर देगा, वो घर रहेगा। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 5 मिनट क्रेजीली इंपॉर्टेंट है। वो जब घर रहेगा ना तो मोबाइल पागलों की तरह चलाएगा, और अगर आप एक वर्किंग पेरेंट हो तो यू हैव नो आइडिया हाउ मच दैट स्क्रीन टाइम विल बी, क्योंकि पढ़ता बच्चा मोबाइल रख के है साथ। तो यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी बहुत 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 जरूरी है। इधर आप उसको कॉन्फिडेंस में लो, आपको लगता है कि वो मेरी सुनता है तो चलो आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय स्टूडेंट्स। आपको लगता है कि बट एक टाइम टेबल होना चाहिए जो वो खुद बनाए। बट यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, जैसे आज मैं एक पेरेंट से, अभी एक बच्चा मेरे से बात कर रहा था, आज मैं ऑफिस में आई वाज, मतलब मैं सेशन ऑफिस से ही कर रहा हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी बच्चों की, तो एक बच्चा मेरे पास आया, आई एम नॉट नेमिंग क्योंकि आप पेरेंट्स सेशन में ही है। वो बच्चा कहता है 10th का कि सर मैं कल पढ़ा 8 से 5 बजे तक, रात को 8 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ा, और मैं पूरा दिन नहीं पढ़ रहा, और ये सही है कि गलत है? अब इसके पीछे इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे क्या लेट नाइट स्टडीज कितनी होनी चाहिए, इफ होनी चाहिए, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं, यहाँ पे समझेंगे। अगर मेरे बच्चे का बोर्ड एग्जाम, हर बच्चे का बोर्ड एग्जाम जो होगा, क्या समझना, वो अप्रोक्सीमेटली सुबह 9 से 1, 10 से 1, 10 से 2, इसके 9 से 2 के बीच की विंडो में होगा। एम आई राइट?
जो 10th के बोर्ड एग्जाम होने हैं 2 महीने बाद, वो कौन से विंडो में होंगे? वो सुबह वाली विंडो में होंगे, एम आई राइट? अब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा रात भर पढ़ रहा है, और हम एज अ पेरेंट प्राउड फील कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, कि अब देखो एकदम सीरियस हो गया। पहले तो सीरियस नहीं था, एंड में आके पेरेंट बड़े खुश होते हैं, एंड में खींच दिया सर उसने, आके एंड में खींच दिया। बिल्कुल सही है, खींच दिया। अब होगा क्या? जो बच्चा 3 बजे सो रहा है, 4 बजे सो रहा है, स्कूल जा नहीं रहा, स्कूल जाना धीरे 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 बिल्कुल कम हो जाएगा। वो बच्चा जो 3 बजे सोएगा, वो 4 बजे सोएगा, वो उठेगा 11 बजे सुबह, 12 बजे तक नहाएगा धोएगा। तो उसका, अब समझो ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल साइंस है। उसका जो साइकिल ऑफ ब्रेन बन गया, वो 12, 12:30, 1 बजे दोपहर के बाद चलना शुरू होगा। आप समझो। लेकिन जिस टाइम पे मेरा एग्जाम है, वो सुबह के टाइम पे है। सो अब इमेजिन, और बच्चों इमेजिन करेंगे हम एक चीज, कि मेरे बच्चे की तैयारी पूरी है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा था, वो रात रात भर पढ़ रहा था, सैंपल पेपर कर लिए, मेहनत कर ली, लेकिन जिस टाइम पे पेपर होना है 10 बजे सुबह, उस दिन भी वो उठ भी गया, बिकॉज पेपर तो देने जाएगा ही जाएगा, बट उसका दिमाग ही नहीं चल रहा, बिकॉज ब्रेन नीड्स टाइम टू एडजस्ट टू द शेड्यूल्स। हम जेटलैग, हम सब जेटलैग वर्ड जानते हैं। सो ये है a way where a hard working student does not end up getting the desired result, because जिन सब्जेक्ट में सोच के आंसर लिखने हैं, जहां पे आपको इतना ज्यादा आपने पढ़ा हुआ है, उसको आपने रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में, एंड यू आर नॉट मेंटली फ्रेश, नॉट बिकॉज यू आर नॉट मेंटली फ्रेश, बिकॉज बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज मेरे बच्चा का साइकिल बिल्कुल चेंज था। वो 5 बजे सो रहा है, 4 बजे सो रहा है, और मैं जब भी एज अ पेरेंट 2 बजे उठ के वॉशरूम जाता हूँ, या मैं पानी पीने जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे बच्चे के कमरे की लाइट जल रही है, और वो पढ़ रहा है, और मैं देखता हूँ, चुपके से देखता हूँ, पेरेंट्स देखते हैं चुपके से, और मुझे अंदर से खुशी हो रही है, खुशी बहुत जरूरी है, पर मेरा साइकिल खराब हो गया। कुछ भी हो जाए, और ये प्रॉब्ली अभी इतना मैटर नहीं करता, बट जब एग्जाम में, बिकॉज हम इसके बाद वी वुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ अ सेशन, तो जब एग्जाम में 1 महीना रह जाएगा, 1 महीना अप्रोक्सीमेटली, तब यू हैव टू इंश्योर एज अ पेरेंट, एंड बिकॉज मैं तो चलो उनके साथ टच में हुई हूँ, यू हैव टू इंश्योर एज अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, सॉरी, एज अ पेरेंट एंड देयर गाइड, कि रात को 1 1:30 बजे के बियॉन्ड सेल्फ स्टडी बंद हो जानी चाहिए। सो दिस शुड बी समवेयर अराउंड, बिकॉज ब्रेन को 20 दिन लगते हैं साइकिल चेंज करने में। सो अभी चलो ठीक है, जैसे पढ़ते हैं पढ़ने दो, बट आई थिंक समवेयर अराउंड 1 1:30 बजे अगर वो सो रहे हैं, दे गेटिंग अप एट 7:38, इट्स अ डिसेंट टाइम, इट्स एन एब्सोल्यूट डिसेंट नंबर ऑफ आवर्स, सो दैट दे आर फ्रेश फॉर अ मॉर्निंग रन एज एन रन ऑफ स्टडीज। सो प्लीज, हम उनको प्रेशर देंगे किस चीज का? विल देखो, दो टाइप का प्रेशर होता है, वन इज बैड प्रेशर, इज गुड प्रेशर। बैड प्रेशर इज लाइक अ चाइल्ड फील पैरालाइज्ड, दिमाग नहीं चल रहा, एंजाइटी हो रही है, और मुझे बच्चे किलो किलो के हिसाब से मैसेज करते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप दंग रह जाओगे, सर ये मेरे बच्चे का मैसेज है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस इतने इतने लंबे लंबे मैसेज, सर बहुत एंजाइटी हो रही है मेरे पेरेंट्स को। मैं आपको टिपिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, टिपिकल, सर बहुत एंजाइटी हो रही है, इफ आई माइट हैव, मेरे को शायद कल परसों ही रात को एक लंबा सा मैसेज आया एक बच्ची का, आई माइट हैव इट, मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज पढ़ के बता रहा हूँ, जेनेसिस के बच्चे के, और आपके ये रिपीटेड मैसेज आते हैं बच्चों में। सर आई एम रियली स्केर्ड फॉर द प्री बोर्ड्स, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, एंड इफ आई डोंट डू गुड इन प्री बोर्ड्स, आई वोंट गेट एडमिशन इन एनी स्कूल, and if I don't get good percentage in pre-boards also, am I even worth it? There is, because there is only 10% of the change in the boards and the pre-board marks. I really want to score above 90% and make my parents proud. Sir, I am trying my best, but stress बहुत हो रहा है, I can't help it, my mind is continuously revolving around it, can you please help me? सो अब पता क्या होता है हम लोगों के लिए ना, हम लोगों ने एक आई वुड से, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग भी एज टीचर्स, एडुकेटर्स, हम एज पेरेंट्स, हम ये बात बहुत कैजुअली बोल देते हैं बच्चों को, या 10th ही तो है, 10th ही तो है, हमने भी तो की थी, आप समझो, ठीक है, बट वो जिस जर्नी में है ना बच्चा, उसके लिए इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद वो शो ना करे, शायद वो इतनी चीज़ शो ना करे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो मार्क्स कितने लाएगा, मैंने जितना मैं समझता हूँ बच्चे को, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे पेरेंट्स के, वो डू से, क्या मैं उनकी नज़रों में खरा उतर पाऊंगा? वो जो प्रेशर अनसेड है, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत कूल हैं, आई नो मोस्ट ऑफ यू पर्सनली, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत कूल है, सर कुछ नहीं होता, जो कर लेगा देख लेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, वो ऐसे ही, लेकिन आपका बच्चा उसको बहुत डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर जाता है कभी।
बिकॉज वो बच्चे को पीयर प्रेशर के साथ साथ ये भी है कि मुझे मुझे अपने पेरेंट, खासकर जो पेरेंट्स बहुत ट्रस्ट करते हैं ना बच्चे पे, वो बच्चे बेचारे उल्टा भी कभी कभी उल्टा भी सोचने लगते हैं कि मेरे पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, मुझे कुछ नहीं कहते, जब जो मैं बोलता हूँ मुझे लेके देते हैं, जहां मैं बोलता हूँ मुझे भेजते हैं, दे आर एब्सोल्युटली विद मी, सो नाउ आई हैव टू रीपे देम विद लॉट ऑफ गुड मार्क्स. You have to understand, we don't want their repayment with good marks. I think we want their repayment with strong values, strong work ethics, very high effort. Outcomes आ जाएंगे. This is where I want you guys to talk to them. कि यार तू अपना बेस्ट कर. मतलब जॉइना की मदर को ये बोलना चाहिए, बच्चे तू अपना बेस्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा. आई एम एब्सोल्युटली विद यू. सेम इज राजीव, सेम इज, बट राजीव हैज जस्ट स्टार्टेड पुटिंग इन 2 दिन से. ठीक है. सो 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 वी नीड टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस. बट कॉन्फिडेंस अगेन डज नॉट मीन कि दे विल बी अलाउड कि वो 4 घंटे मोबाइल चलाए, 5 घंटे मोबाइल चलाए. कॉन्फिडेंस मीन भैया तेरा काम है पढ़ना, तू पढ़, आउटकम देखी जाएगी, बट मुझे तेरे में एफर्ट दिखना चाहिए डलते हुए. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज एब्सोल्युटली. So again, coming back, because I'm winding this part of the session, then I'll move to the most important part of the session. Most important, 10th में आपका रोल माहौल घर का अच्छा रखना है, रिलैक्स रखना है, येट अकाउंटेबल रखना है. देयर टू कॉन्ट्ररी वर्ड्स नहीं है, दे सपोर्टिव वर्ड्स है. रिलैक्स होना चाहिए बट अकाउंटेबल होना चाहिए. स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट. प्री बोर्ड्स में उतना करके जाए जितना वो थरोली कर सकता है. इनकरेज करो उसको, थरोनेस चाहिए यार, कि जो कर गया, जो तूने मुझे बोल दिया, ये 9 चैप्टर्स करके जा रहा है 12 में से, इनमें 9 में मेरे बच्चे गलती नहीं चाहिए, 3 में गलती होगी कोई चक्कर नहीं, 9 थरोली करके. सैम्पल पेपर्स कब करने हैं, प्रीवियस ईयर कब करने हैं, जब हमारा किसी बच्चे का कोई चैप्टर थरोली डन है, उसके बाद ही और शी कैन मूव टू द सैम्पल पेपर स्टेज. कोई चक्कर नहीं है, करने जरूरी भी है, बट जब थरोनेस सब्जेक्ट में आएगी, किसी चैप्टर में थरोनेस आ गई तो आप उसके सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, उससे पहले नहीं करने चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना. टॉक टू देम अबाउट वॉट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग, वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग. एक कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आपको लग रहा है आज बच्चा 60 पे भी है, ट्रस्ट मी, अगर वो बहुत टाइम है, अगर 70 दिन 65 डेज ढंग से के तरीके से पढ़ गया ना, 60 का बेटी हो जाएगा, आप भी हैरान हो जाओगे. और ये हर साल होता है. एवरी ईयर वी सी किड्स not even scoring, मतलब not even scoring passing mark in any of our tests, to be honest, ends up scoring 85 88%. And we all party, we all celebrate कि यार ये कैसे हो गया, बट ये हर साल होता है. So this is first part. Any doubt in the first part of this? कोई चीज आप रिगार्डिंग 10th पूछना चाहते हैं, आई एम गिविंग यू 1 minute विंडो. यू कैन टैप, व्हाट डू वी से, आप चैट पे लिख दो, देन आई मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लैडर पार्ट. How do we ensure the kids are not climbing the wrong ladder? I'm so sorry. आपको कोई डाउट है, आप 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, आप कुछ पूछ सकते हैं रिलेटेड टू 10th. एनीथिंग यू वांट टू नो और अंडरस्टैंड द रिलेटेड टू द क्लास 10th राइट नाउ. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी. सर अभी आपने कुछ बताया कि जो बच्चा थॉरली करना चाहता है जी उस पार्ट को हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, विच इज वेरी गुड थिंग। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट। अगर बच्चा ये कहता है रुद्रांश की भी अब मुझको सारा सिलेबस ही करना है और थॉरली सारा सिलेबस करना है, तो क्या वो सही रहेगा? मतलब जस्ट एक पर्सनल डिस्कशन सर, प्री बोर्ड के लिए। जी सर, अगर देखो मैंने ये पहले भी बोला कि अगर हमारा बच्चा ऑलरेडी अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, 85% 88% 80% जो ऊपर ला रहा है, देन उसका टारगेट प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस करना होना चाहिए. होना चाहिए. क्योंकि देन उसको प्री बोर्ड जब खत्म होंगे और बोर्ड के बीच में, तब उसको उस टाइम पे सारा फोकस अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, मोर टुवर्ड्स अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, राइटिंग, उस पर लेके जाना चाहिए. अगर मेरा बच्चा ऑलरेडी 80 से ऊपर है, तो माई टारगेट शुड बी कि वो कोशिश करे 100% सिलेबस करके जाए. वो बिल्कुल ठीक सोच रहा है उस केस में रुद्रांश से. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आया है, ये मैं क्लियर करता हूँ. शुड वी अलाउ किड्स, एंड दिस इज अ वेरी गुड डाउट, आई वांट ऑल ऑफ यू टू, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए. शुड वी अलाउ किड्स टू टेक डे ऑफ फ्रॉम द स्कूल और नॉट? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अब यहाँ पे मैं, अगेन दिस इज दिस, यहाँ इसका कोई एक आंसर नहीं है,
बट मैंने जैसे मैं बहुत क्लियरली बिलीव करता हूँ, और मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट द स्कूल, स्कूल्स आर वेरी गुड। स्कूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लाइफ में। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मिथ सेंसिटिव है कि मेरा बच्चा स्कूल में जो 8 घंटे 9 घंटे दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 7 बजे 7:30 स्कूल के लिए निकल जाता है, 8 बजे निकल जाता है, इज कमिंग बैक एट 2:33 विंटर की वजह से, वो 7 8 घंटे इस टाइम पे प्रोडक्टिव कहाँ ज्यादा है? मुझे लगता है कि मैंने, और ये मैंने बच्चों को इनकरेज किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और मैं इस केस में उनको बोला था, मैंने कहा हो सकता है पेरेंट्स से मेरी बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, बट मैं डरता नहीं हूँ बिकॉज आई हैव माई नंबर्स हियर। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इस स्टेज पे सेल्फ स्टडी की गेम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिकॉज इस स्टेज पे पढ़ाने से ज्यादा खुद पढ़ने से चीजें आएंगी, बिकॉज पढ़ा चुके हैं सारे। ठीक है। तो मैंने बच्चों को ये बोला था, जो एक आधा बैच में ले रहा हूँ, कि यार तुम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो तुम्हारा स्कूल 6 डेज अ वीक है, कई स्कूल 6 डेज हैं, कुछ स्कूल 5 डेज हैं, बट मान लेते हैं 6 डेज अ वीक भी स्कूल है तुम्हारा। ठीक है, आप ये सिंपल सा मैथ समझेंगे, क्योंकि बच्चों को अटेंडेंस का प्रेशर होता है। और तुम यार हफ्ते में एक छुट्टी बीच में मार लो, वेडनेसडे को छुट्टी ले लो या थर्सडे छुट्टी ले लो, सो दैट तुम्हें मिड वीक रिलैक्सेशन मिल गई और तुम्हें सेल्फ स्टडी कर ली तुमने। और मैंने उनको रूटीन भी बताया था क्या होना चाहिए। तो अगर तुम 5 डेज भी जा रहे हो इन अ डे, हफ्ते में, अपार्ट इंस्टेड ऑफ 6, तो 5/6 into 100 सिंपल परसेंटेज है, इज स्टिल 83 पॉइंट समथिंग। सिंपल सा मैथ्स लगाया मैंने, 6 में से 5 दिन वो बच्चा स्कूल जाएगा, अगर हफ्ते में एक छुट्टी भी ले लेगा सेल्फ स्टडी के लिए, तो 5/6 into 100 इज समवेयर अराउंड 83% के आसपास आएगा, समथिंग डेसिमल्स में आ जाएगा। मेरे बच्चे की, सबकी, आई थिंक यहाँ ऐसा कोई पेरेंट नहीं होगा जिसके बच्चे की अटेंडेंस 75 से कम होगी। आई थिंक 10th में बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब भी उसकी अगर अटेंडेंस 83 82 से ऊपर है, और 75 चाहिए मिनिमम, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, प्रोवाइडेड। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा यार तुम लोग, बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि यार सर पापा मम्मा छुट्टी नहीं देते, स्कूल जाओ कुछ तो सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा यार तुम लोगों को स्कूल इसलिए जाने को बोलते हैं पेरेंट्स, बिकॉज तुमने वो ट्रस्ट जीता नहीं है। और उनको मैंने समझाया भी था कैसे हैंडल करना है इस चीज को, कि यार तुम जिस दिन तुमने छुट्टी ली है, कि मम्मा मुझे एक दिन दे के देखो, आप देखो मुझे सेल्फ स्टडी करूंगा मैं, आप अपने टाइम से उठो, 8 साढ़े 8 उठ जाओ, आप 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, आप 9 से 2 के बीच में जितनी देर में आप स्कूल होते हो, आप 3 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो। कोई पेरेंट पागल थोड़ी है जो मना करेगा सेल्फ स्टडी करने से आप। पर अगर आप स्कूल नहीं गए, आप उठ 11 बजे रहे हो, आप 12 बजे तक नहा रहे हो, फिर आप मोबाइल चला रहे हो, और आप 1 1:30 बजा दिया आपने, अब आप फिर पढ़ने बैठोगे, तो पेरेंट तो बोलेगा ना, इससे बेटर तू स्कूल जा, कुछ तो सीख के आए। सो यहाँ पे ये बहुत एक दुविधा वाला सवाल है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ये बोला, मैंने कहा यू हैव टू अर्न दैट राइट फ्रॉम योर पेरेंट, फॉर योर पेरेंट्स ट्रस्ट दैट ओके यार मेरा बच्चा छुट्टी लेता है बट एक्चुअल डबल आउटपुट निकालता है, तो कोई पेरेंट नहीं मना करता। आई थिंक आप मेरे साथ एग्री करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। मन में शायद मुझे कोई डांट भी रहे होंगे 2 3 पेरेंट्स की, ये एंटी चीजें बोलता है, बट मैं प्रैक्टिकल, मुझे बच्चों का सक्सेस चाहिए। उसमें चीजें नॉर्म्स के हैं, साथ नॉर्म्स के नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट क्योंकि वो अभी लास्ट में बहुत तगड़ी डिबेट होगी हमारी, जब मैं डमी स्कूल और नॉन डमी स्कूल का कंपैरिजन आपको बताऊंगा। तो वो वहां पे भी मतलब आई नो दैट कुछ क्वेश्चन उठेंगे, बट अगेन आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ये हो गया हमारा 10th का पार्ट, आई थिंक। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम अब ओके, नाउ अब ये जो स्टोरी मैं आपसे, जहां से आज की स्टोरी शुरू की, कि भी वो 2 लड़कियों की एंड वो लैडर वाली, ना यार मुझे ये चाहिए कि एवरी पेरेंट सिटिंग इन दिस रूम अटेंडिंग दिस सेशन ऑनलाइन, एंड देन maybe the ones who will see this in the video recording also, you have to ensure that we have to together ensure that मेरा बच्चा सीढ़ी सही चढ़ रहा है। सो सीढ़ी सही चढ़ने का मतलब समझेंगे। यहाँ पे कई पेरेंट्स बेचारे बड़े भोले होते हैं, और बच्चे मुझे आके बताते हैं कि यार पेरेंट्स कह रहे हैं सर अब तूने अभी तक फिगर आउट ही नहीं किया तूने क्या करना है, क्या करेगा आगे, तेरे को पता नहीं है, क्यों बच्चे कंफ्यूज क्या करना है आगे। मतलब मुझे इससे, अनफॉर्चुनेटली, अब बुरा मत मानना, मैं किसी को किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, इट्स लाइक फैमिली डिस्कशन। मुझे इससे स्टूपिड बात नहीं लगती पेरेंट्स के एंड पे। यार एक 15 साल का बच्चा है, 15.5 साल का बच्चा है यार, वो कैसे फिगर आउट कर लेगा उसको जिंदगी में क्या करना है? मतलब आप सिंपल सोचिए ना, उसने उसने जिंदगी देखी क्या है? वही देखी है ना जो आपने दिखाई है। थोड़ी सी और देख ली होगी स्कूल के 5 7 दोस्तों की वजह से, थोड़ी सी हमने दिखा दी होगी, इससे ज्यादा जिंदगी का देखी। अब कुछ सोचिए, हम किसी से कंपैरिजन करके पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें कोई अपना ऑफिस में बंदा मिल जाता है जिसको क्लियर है उसके बच्चे ने क्या करना है, हम सोचते हैं हमें तो पता ही नहीं है क्लियर क्या करना है, हम बेचारे बच्चे पे प्रेशर डाल देते हैं। वो बच्चा फिर क्या करता है, वो प्रेशर इतना ले लेता है कि यार वो कहता है यार सर आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, या मुझे क्या करना चाहिए।
I mean, is this a decision which we should take it so casually? I'll tell you why we should not take it casually. आप एक बार विजुअलाइज करते हैं, 2031 चल रहा है, अभी चल रहा है 2024, हम 2031 में जंप करिए, मेंटली जंप कर जाइए। अब 2031 वो साल होगा, मैंने 2031 इसलिए चुना है, जहां पे मोस्ट ऑफ आर स्टूडेंट्स, जो ये मेरे बच्चे हैं जेनेसिस वाले, ये कॉलेज पास आउट करके निकलेंगे किसी भी स्ट्रीम से। अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो वो 2032 में निकलेगा, 2032 में, प्रोवाइडेड वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है। समझ गए कैलकुलेशन? 2025 में ये 11th शुरू करेंगे, 27 में 12th के पेपर देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, 27 से 31, अज्यूमिंग 4 साल का कोर्स करते हैं, 31 में दे विल बी इंडस्ट्री रेडी, मतलब दे विल बी आउट इन द मार्केट फॉर जॉब्स, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, वॉट एवर इट इज, मोस्ट ऑफ देम फर्स्ट टाइम निकल जाएंगे। तो 2031 की तैयारी अंडरस्टैंड करेंगे। 2031 में जब ये निकलेंगे, इनके ऊपर एक टैग लगा होगा, वो कॉलेज का हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी का हो सकता है, वो इनके एक प्रोफेशन का टैग हो गया कि वो, आई थिंक, अगर मैं, अब हम सबके साथ वो टैग आज तक चल रहा है, हम कहाँ से पढ़े हैं, हम आज क्या कर रहे हैं, वो मैटर नहीं कर रहा, बट वो टैग हम सबके साथ लग गए, हम उस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के एलिमनाई हैं। आप समझिए। अब जो वो बच्चा जो 2031 में पास आउट होगा, जिसकी तैयारी शुरू होती है, वो 2027 में क्या करेगा ये डिसाइड करेगा, बिकॉज कोर्स जिसमें आप घुसोगे वहीं से एंट्री लोगे, एग्जिट लोगे। वो 2027 में किस चीज में आप घुसोगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है तो कि आप 2025 में कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करोगे, सब्जेक्ट्स कौन से ऑप्ट करोगे। और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं 2024 आज दिसंबर से लेके अगले 3 महीने मेरा थॉट प्रोसेस एज अ फैमिली, या एज माई चाइल्ड्स इंटरेस्ट, मैं किस तरफ जाता हूँ। सो सच अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन, सच अ क्रूशियल, आई वुड से, crucial element of the child's life. How can we ask him or her to take it so casually? Number one is that we need to understand अब कैसे करना है, कैसे अगर कंफ्यूजन है। मैंने जितना मेरे हाथ में है, मैंने आप लोगों के लिए, मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था क्योंकि इस बारे, ठीक है, इट इज मोर टू फॉर माई स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको एक चीट शीट बना के कल एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट भेजा था, आप लोगों ने चेक किया? हाउ मेनी ऑफ यू चेक दैट डॉक्यूमेंट विद द नेम राहा, राहा बाय राहा ई बुक? रेज योर हैंड्स। जूम पे एक ऑप्शन आती है हाथ खड़ा करने की, ओनली 3, 4, 5, 8, 9, ओके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कल एक हमारा एक ऑफिशियल नया ग्रुप बना है जिसमें मैं खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। वी कॉल दैट ग्रुप एज मिशन 2025 एंड 27/27। और ये हर साल मैं बनाता हूँ इस स्टेज पे बच्चों के लिए, सो दैट आई स्टे इन टच विद देम एंड आई कैन गाइड देम फॉर एवरीथिंग इन लाइफ टिल 27। सो आपने जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा, उसको देखो, लैपटॉप पे या सिस्टम पे प्रिंट आउट भी ले सकते हो, एंड वहां से आपको 90% चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने अपनी तरफ से काफी डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया, बट मैं इसको और अपग्रेड करूंगा। मैं इसका एक नेक्स्ट वर्जन 1 महीने में एक और लॉन्च कर दूंगा। बट बच्चे बहुत परेशान चल रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों के लिए एक बना के दे दूंगा। ये मैंने इस पे मुझे काफी टाइम लगा। तो उसमें मैंने, मतलब हमने अपने एंड से 10-10, 12-12 करियर ऑप्शन, ज्यादा इनफैक्ट ज्यादा, 10 से काफी ज्यादा पर स्ट्रीम दी हुई है, पर सब्जेक्ट्स। मतलब अगर मैं ह्यूमैनिटीज करता हूँ क्या क्या करियर ऑप्शन है, अगर मैं ये साइंसेस करता हूँ क्या क्या करियर ऑप्शन है, एंड फलाना ढमकाना ना। अब आपका रोल क्या है कि उनको एक्सप्लोर करना, आपका रोल है बच्चे के साथ, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आप, मेरे पास होगा वो, मैं आपको दिखाता हूँ, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। जिसने जिसने जिसको कल टाइम नहीं मिला देखने का, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू। थोड़ी सी हैवी फाइल है, ओके, वी कैन इग्नोर दिस। ओके, सो सम इट लुक्स सम, इफ यू हैव नॉट सीन इट, इफ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, तो पहले पेज पे देयर आर 20, ये आप सबके पास पहुंच चुका है, ठीक है। टॉप 20 एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आफ्टर 12th, ये वो है कि 20 एग्जाम्स कौन से हैं, 4-5 और हैं जो मैं और ऐड ऑन करूंगा नेक्स्ट वर्जन में, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको ये दिया एग्जाम, इफ यू सी, आई हैव नॉट जस्ट गिवन द नेम ऑफ द एग्जाम, व्हाट वी हैव गिवन इज एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इट, ये एवरेज रेंज है, थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है ऑब्वियसली। सिलेक्शन रेशियो क्या है, मतलब कितने बच्चे देते हैं, उनमें से कितने बच्चे यहाँ तक पहुंचते हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, कब होता है एग्जाम, सैम्पल पेपर के लिंक्स लास्ट में मिल जाएंगे, सोर्स, बच्चे कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम फी अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अचीवमेंट अपॉन क्रैकिंग द एग्जाम, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, एंड इसके करियर पाथ क्या होते हैं, देन देर इज ऑल्टरनेटिव पाथवे टू दिस। सो दिस इज वन शीट।
देन वी हैव अनदर शीट जिसमें व्हाट वी हैव कवर्ड इज टॉप 20, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। देन करियर ऑप्शंस इन नॉन मेडिकल। बहुत सारे लोगों को आज तक यही लगता है नॉन मेडिकल मींस इंजीनियरिंग एंड मेडिकल मींस डॉक्टर। वक्त बदल चुका है, प्लीज हमें सोच बदलने की जरूरत है। नॉन मेडिकल डज नॉट मीन इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल मींस लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यू कैन लुक इनटू दिस। अगर आप देखो, मैंने आपको रेडीमेड चीज दे दी है, पर अब अगर आप इस पे टाइम नहीं लगाओगे तो गलती हमारी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद इट। प्रिंट आउट निकाल के आप इसको रिसर्च करो, गूगल पे जाओ और अपने इन पे रिसर्च करो। मैंने अपनी तरफ से, दिस इज नॉन मेडिकल, देन वी हैव दिस मेडिकल। मेडिकल में सब कुछ जितना पॉसिबल था, कुछ चीजें मिसिंग है मैंने अभी देखा। कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली शीट। टॉप 21 फ्यूचर करियर ऑप्शन इन द चेंजिंग वर्ल्ड, दिस इज गेम चेंजर। आई वॉन्ट यू टू गाइस टू स्पेंड टाइम ऑन दिस, व्हेन यू गेट टाइम प्लीज स्पेंड टाइम ऑन इट। बिकॉज हमें ये भी देखना है 2031 32 के, ये मैंने बनाया भी किस परस्पेक्टिव से, वट एवर रिसर्च आई डिड वॉज विद द परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया बियॉन्ड 2030। कैसा दिखेगा, क्या क्या जॉब्स होंगी, क्या क्या बिजनेसेस होंगे। तो क्योंकि इस टाइम पे वो बच्चे हमारे मार्केट में आएंगे फॉर बीइंग प्रोफेशनल्स। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर देम, अगेन दिस इज एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, नंबर वन इज दैट, पहली चीज कुछ क्लियर करते हैं। और मैं अपने किसी भी पेरेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये आज के बाद अगेन बच्चे पास नहीं होने चाहिए। अगेन वो वाला पार्ट आ गया सेशन का। मैं फेड अप हो चुका हूं जब बच्चा या पेरेंट मुझे ये बोलता है, सर 10th में अगर साइंस में मार्क्स अच्छे आ गए तो नॉन मेडिकल ले लेगा। मैंने ऐसी, आई एम सो सॉरी, बुरा मत माना, ऐसी वाहियात बात जिंदगी में नहीं सुनी। मतलब हर साल सुनता हूँ, सॉरी, हर साल ऐसी बात, बस ऐसी वाहियात बात एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए हमारी। मतलब हम कौन से जमाने में जी रहे हैं, कोई लिंक नहीं है। एक बच्चा जिसके 80 आउट ऑफ 80 साइंस में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, अनफॉर्चुनेटली अगर उसका, आई वुड से, अगर उसका इंटरेस्ट या पर्पस या आई वुड से इंक्लिनेशन सब्जेक्ट्स में नहीं है, वो 80 और 80 साइंस, मैंने हर साल ऐसे बच्चे देखे। लास्ट ईयर मैं आपको नाम लूंगा बच्चे का, लास्ट ईयर एक बच्ची थी, लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्ची थी जेनेसिस में पढ़ती थी 10th में। उसको मैंने क्लियर बोला, मैंने कहा बच्चे तू प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, तू साइंस मत लियो, तू ह्यूमैनिटीज लियो। वो मुझे बच्ची ने क्या बोला, सर ये तो गलत बात है, आपको तो हम मुझे बोलना चाहिए मैं साइंस लूं, क्योंकि मैं, आप मेरे को जेनेसिस ही पढ़ना है 11 12। मैं कहा यार तू प्लीज समझ, ये तेरी लाइफ का बात है, तू तू साइंस के लिए बच्चे नहीं बनी है। इसका ये मतलब नहीं तू कैपेबल नहीं है, आप समझिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है मेरे बच्चे तू कैपेबल नहीं है, पर तू साइंस स्ट्रीम में उतना से बेटर कहीं और कर पाएगी। वो अड़ गई, उसने साइंस स्ट्रीम ही ली, जेनेसिस में ही पढ़ी। 11 12 उससे मसा वो 12th में पहुंची है। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग, अब अगेन शी इज गोइंग बैक कि नहीं सर आप बिल्कुल ठीक बोलते थे, अब मैं बीबीए करूंगी वापस। तो द पॉइंट इज दैट इट इज नॉट दैट कि मेरे बच्चे, और स्कोर उसका 10th में 96% था। सो आपको ये अपने दिमाग से गाना, मेरे को प्लीज, मेरे को ये, मेरा खून खौल जाता है इस बात पे जब मुझे बच्चा के ये बोलता है या पेरेंट बोलता है सो 10th के बाद देखेंगे क्या करना है। अरे भाई कैसे, आप कौन से जमाने में जी रहे हो, हमारा जमाना चला गया है? क्या आपका जमाना वो वाला चला गया कि 10th का रिजल्ट आता था, उसके बाद समर वेकेशन हो जाती थी, उसके बाद जुलाई में हम लोग जागते थे और सोचते थे अब क्या करना है। हम नहीं वेट कर सकते वो, क्योंकि आप समझिए अप्रैल में सब कुछ शुरू हो जाएगा। प्लीज समझिए इस बात को। आप अगर जून में शुरू करोगे तो जब एग्जाम्स होने हैं, एंट्री एग्जाम 2025 में, जब 2027 में जब एग्जाम्स होने हैं, डिपेंडिंग ऑन बच्चा क्या करता है, वो तो अपने टाइम पे ही होने हैं ना। आप समझिए, वो तो अपने टाइम पे ही होंगे ना। वो हमारा बच्चा अप्रैल की जगह जून में शुरू कर रहा है, जुलाई में शुरू कर रहा है, मई में शुरू कर रहा है, उनको इस बात से क्या फर्क है यार। हमारे बच्चे को टाइम कम मिलेगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो जाएगी। हमें ये चीजें अब सोचनी है, हमें ये होमवर्क अब करना है। और एज अ पेरेंट सबसे बड़ा रोल हमारा ये है कि मुझे इंश्योर करना है कि मेरा बच्चा सही सीढ़ी चढ़ रहा है, कि वो सही जगह एफर्ट डाले। आपका सबसे बड़ा रोल अगले 2 महीने ये है। क्योंकि लेट्स फेस इट, 10th के नंबर हम जितना मर्जी गाना गा लें, आपके कितने थे कोई मैटर नहीं करता अगर आप 20 साल 25 साल पहले फ्लैशबैक में चले जाओगे। मुझे 20 साल हो गए 10th की हुए, 20 से भी ज्यादा, 21 साल हो गए मुझे 10th की हुए। मुझे नहीं पता, मेरे मेरे 85% आए थे, मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ यूज हुए हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि यार जिंदगी में 85 70 नहीं देखे थे, बोर्ड में 85, दैट्स इट। हमें लॉन्ग टर्म, हम सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते टाइम की।
हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ प्री बोर्ड आगे तेरे हफ्ते बाद उठ जा, सो के उठ जा, पढ़ ले। बहुत जरूरी है वो रोल तो आपका, वो आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, बट प्लीज थोड़ा सा हमें हेल्प करना है कि भैया वो सीढ़ी जो चढ़ गया, जो चढ़ने की सोच रहा है या चढ़ेगा, उस पर एफर्ट सही तरीके से हो। यही मैं कर रहा हूँ उन लोगों के साथ आजकल, साथ साथ अपार्ट फ्रॉम 10th। सर मैंने ग्रुप्स में नहीं शेयर होगा, मिशन वाला ग्रुप अलग रहेगा, उसमें 11 12 से रिलेटेड चीज़ें अभी शेयर नहीं होंगी, आप वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, मिशन 2025-27 वाला वो ग्रुप का लिंक ग्रुप में आया हुआ, मेन ग्रुप में आया हुआ। सो अब ये करना कैसे, अब प्लीज समझिए, उसको मैं आपको बताता हूँ उसको करना कैसे। अगर तो मेरा बच्चा एब्सोल्युटली क्लियर है तो ग्रेट है, कोई कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, कि मुझे पता है मैंने ये करना है फिर ये करना है, इसके लिए आप मुझसे जब मर्जी बात कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है, अब ये समझेंगे, अगर कंफ्यूजन है 80%, मतलब 50% कंफ्यूजन है, 50% क्लैरिटी है, तो तो हम स्ट्रीम पे फोकस नहीं करेंगे। मैंने बच्चों को भी सिखाया था जब मैंने स्टूडेंट सेशन लिए हैं, हम स्ट्रीम पे फोकस नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। समझो इसको। मैंने बच्चों को ही बोला कि यार इमेजिन करो एग्जाम नहीं होते, तो मेरे को जो 10th में सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम ना हो, प्रेशर ही नहीं है कोई एग्जाम का, और तुम्हारी 8 बुक्स 10 बुक्स जो भी है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री में, ऐसे जो भी 8 10 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन गया, वो तुम्हारे पास बुक्स तुम्हारे टेबल में पड़ी हैं, तुम उनमें से कौन सी बुक्स, एग्जाम का प्रेशर नहीं है, रिपीट, कोई देयर इज नो फियर ऑफ एग्जाम, what books or notebooks you will pick up on your own to study for grasping knowledge and spending time with subject, वहां से जो सब्जेक्ट का आंसर आ रहा है, वो सब्जेक्ट जो आंसर में आ रहे हैं आपके, अपनी स्ट्रीम चॉइस सब्जेक्ट उस उन सब्जेक्ट्स के अराउंड क्रिएट करने की कोशिश करो। और अगर 75% भी मैपिंग हो जाती है तो भी वो स्ट्रीम आपके लिए ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे, मैं जीरकपुर में सेशन ले रहा था जब ये करियर वाला, तो एक एक लड़की ने मेरे से पूछा, एक लड़के ने शायद मेरे से पूछा कि सर आई लव फिजिक्स, आई लव मैथमेटिक्स, आई हेट केमिस्ट्री, आई लव मैथमेटिक्स, आई लव डूइंग फिजिक्स, आई काइंड ऑफ हेट केमिस्ट्री, सो व्हाट शुड आई डू, शुड आई टेक नॉन मेडिकल और शुड आई नॉट टेक नॉन मेडिकल। तो देन आई आंसर्ड इन वॉट एवर लॉजिकल वे कि यार तू एक चीज समझ कि नॉन मेडिकल में मेरे पास क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक आएगा, या कोई सब्जेक्ट आएगा। इनमें से इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल एजुकेशन सबसे हो जाती है, फिजिक्स तेरे को आती है, तू कह रहा है, मैथ्स तेरे को कह रहा है तेरा स्ट्रॉन्ग है, बचा कौन सा सब्जेक्ट, इंटरेस्ट है मतलब स्ट्रॉन्ग। और मैं आपको एक चीज फिर क्लियर कर दूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग डज नॉट मीन हाई मार्क्स 10th में। और स्पेशली अगर मैं सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हूं, आप सीबीएसई वालों बहुत ध्यान सुन लो, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हूं 10th में, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मार्क्स एंड द 11 12 के सब्जेक्ट्स। उसको मैंने क्या बोला कि यार एक सब्जेक्ट है जिसको तेरे को आज इतना पसंद नहीं है, केमिस्ट्री, विच इज 20% ऑफ द सिलेबस, अगर 5 में से एक सब्जेक्ट दिक्कत है तो 20% में तेरे को दिक्कत है, 80% तेरे होल्ड में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इट मेक सेंसिबल डिसीजन टू कंटिन्यू विद साइंसेज एंड दैट टू नॉन मेडिकल, बिकॉज तेरा मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इन कंट्रोल। उस लड़की को मैंने क्यों, जो जो मैंने 2 साल वाला एग्जांपल दे रहा हूं, उस बच्ची को मैंने क्यों मना किया था, क्योंकि जब उसकी मैं अंडरस्टैंडिंग देखता था, उसकी ग्रास्पिंग देखता था, उसकी आई वुड से उसकी इंक्लिनेशन देखता था, द काइंड ऑफ डाउट शी यूज्ड टू आस्क, वो साइंस के लिए सूटेबल नहीं थे। दैट वाज मोर टुवर्ड्स क्रिएटिव साइड, मोर टुवर्ड डिजाइनिंग फील्ड, मोर टुवर्ड्स आई वुड से सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। दैट वाज द रीजन आई गाइडेड हर किया, तू बेटा साइंस मत ले, तू ले ले मेरे बच्चे ह्यूमैनिटीज। तो नंबर वन इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, बच्चे को प्लीज कॉन्फिडेंस दो कि यार तू सब्जेक्ट्स पे फोकस कर, कौन से तेरे को करने अच्छे लगते हैं। और नंबर टू इज दैट एक एक ना बहुत गाना हमारे हर देश में, हम सब एक चीज हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा यूपीएससी क्रैक करे, ये हर घर की कहानी है। मतलब इंडिया में आई थिंक ये बहुत, आई वुड से व्हाट डू वी से, बहुत क्या है, हर घर में कभी ना कभी एक डिस्कशन लाइफ में, शायद आपके टाइम पे भी, आपके लिए भी हुआ होगा, अगर हमारे लिए नहीं हुआ था तो शायद रिसोर्सेज कम थे, बट हम अपने बच्चे के लिए जरूर चाहेंगे। अब यूपीएससी के पीछे एक स्टोरी चल रही है, और ये नरेटिव इतना गलत है ना, मैं आपको समझाता हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लूं। आप में से कई लोगों ने लंच नहीं किया होगा, तो साथ साथ लंच कर सकते हैं आप यार, बिकॉज अभी लगेंगे 20 25 मिनट। मैंने वैसे मैसेज करवाया था लंच करके, मुझे लगता है मेरी टीम ने मैसेज डाला नहीं है। ओके, सो अब यूपीएससी की पीछे स्टोरी समझेंगे, मैं आपको एग्जैक्ट विद विद डाटा बताऊंगा, और आप इसको कहीं पे भी वेरीफाई करो।
यूपीएससी के पीछे स्टोरी कहती है कि ये ट्रेंड है कि जिसने यूपीएससी का एग्जाम देना है, जैसे आईएएस बनना, आईपीएस या यूपीएससी में जो भी आता है, उसको 11 12 में ह्यूमैनिटीज ले लेनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन नेरेटिव है। अगेन वाहियात नेरेटिव है। वाहियात समझते हो मतलब, मतलब बेसलेस नेरेटिव है। मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है, जिसको डाउट है। 2014 से 2024, 2014 10 सालों के, अगर मैं लास्ट 10 सालों के यूपीएससी टॉप रैंक्स निकालूं और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड निकालूं, तो वो ह्यूमैनिटीज नहीं है। मोर देन 60%, टचिंग 60%, ये आपको मैं 10 सालों का एनालिसिस बता रहा हूं। मोर देन 60, कई जगह से कई ईयर में से ज्यादा भी हुआ है, बट एवरेज आउट करके 55 to 60% जो लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं टॉप रैंक से, दे वर फ्रॉम इन लास्ट 10 years फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। Now, when I say a science background, that does not necessarily mean an engineer or a doctor. A student who takes 11 12th में subjects like maths, physics, chemistry, bio, this is a science student. He might do a BSc later, he might do a B pharmacy later, he might do biotechnology later, but that's a science student. तो historically last 10 year का result कहता है 50 to 60% of the students were from science background, and remaining 35 40% from, even lesser than that, from non science background. अब जब ये नैरेटिव फैल रहा है मार्केट में, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो देन आई डिड अ रिसर्च फॉर इट। अब वो रिसर्च का कंक्लूजन सुनो आप। होता क्या है, ध्यान समझना। बच्चा ने जब यूपीएससी देना है तो वो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी देगा, यस और नो? मैं अभी इसके बाद टेस्ट ले लूंगा लास्ट में, और ऑनलाइन टेस्ट ले लूंगा, नंबर जाएंगे घर पे आज बच्चों के, ठीक है, पेरेंट्स के। ठीक है, सो आप समझिए, जब बच्चा ग्रेजुएट बन जाएगा, ग्रेजुएट मतलब जब उसकी बेसिक डिग्री बीए, बीबीए, बीटेक, एमबीबीएस, जो भी सीए, वॉट एवर इट इज, वो 2000 मान लो 31 30 32 में पास आउट कर गया। अब वो यूपीएससी के लिए एलिजिबल है। अब यूपीएससी के लिए जब एलिजिबिलिटी आ जाती है, तो यूपीएससी के लिए आप अपने सब्जेक्ट्स चूज करते हो। तो उसमें ये मेरी रिसर्च है, ठीक है, उसमें हुआ क्या, जो लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, उन्होंने उस टाइम पे यूपीएससी क्रैक करने के लिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चूज किए थे। बैकग्राउंड साइंस का था, सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी की चूज किए क्योंकि आसान थे, सिलेबस लिमिटेड था, क्रैक करना आसान था। तो हुआ क्या, इस नरेटिव की वजह से मार्केट में लोगों को, पेरेंट्स को, बेचारों को, भोले पेरेंट्स को क्या वो फैल गई कि यूपीएससी करना है तो 11 12 में ह्यूमैनिटीज ले लियो। मैं ये नहीं कह रहा ह्यूमैनिटीज बुरी स्ट्रीम है, अगर अगर बुरी स्ट्रीम होती तो मैं उसके बारे में करियर रिसर्च नहीं करके भेजता। इनफैक्ट अगर आज की डेट में कोई स्ट्रीम साइंस के बाद अच्छी है, वो ह्यूमैनिटीज है प्रेजेंट डेट में, जिस विद करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा। कॉमर्स में फिर भी मुझे लग रहा है काफी काम, मतलब विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चीजें बदलने वाली हैं, बट ह्यूमैनिटीज इज गोइंग टू स्टे। तो कमिंग बैक, सो आप ये देखो, जो बच्चा 11 12 में ह्यूमैनिटीज ले, इस सोच से कि मैं बाहर होके यूपीएससी करूंगा, आप देखो वो कितना बेचारा भोला है और पेरेंट्स कितने ही भोले हैं। और इसका रीजन भी क्या है, जो बच्चा एकेडमिक बैकग्राउंड साइंस में कर लेता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा मेहनत की आदत डाल देता है बचपन से ही, अभी शुरू हो जाएंगे मेहनत करने, जो भी एंट्रेंस देंगे। तो वो बाय द टाइम, वो बैकग्राउंड जब मेहनत का होता है, तो वो जब वो आसान सब्जेक्ट चूज करता है ह्यूमैनिटीज के, वो बाकी बच्चों को लीड ले जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स से बताता हूँ, ये हो गया यूपीएससी का। फिर आता है कैट एग्जाम। कैट होता है एमबीए के लिए, जो अगेन आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में दे सकते हो। एक ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा या कॉमर्स वाला बच्चा एक रूट पकड़ता है। सर पहले मैं 11 12 में बीकॉम करूंगा, सॉरी 11 12 में कॉमर्स करूंगा, ग्रेट। फिर मैं बीकॉम करूंगा, ग्रेट। बीकॉम के बाद मैं एमबीए करूंगा, ग्रेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक प्लानिंग है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, एमबीए करने के लिए उसको कैट का एग्जाम देना होगा, सीएटी, कैट इज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब वो जो एग्जाम देना है, उस एग्जाम में भी 68% सिलेक्शन रेशियो नॉन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का है, फिर से साइंस बैकग्राउंड के बच्चों में। अगेन, प्रॉब्लम कॉमर्स स्ट्रीम में नहीं है, इट्स अ ग्रेट स्ट्रीम। अगर मुझे सीए बनना है, इससे अच्छी कोई स्ट्रीम नहीं है। अगर मुझे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनना है, इससे अच्छी कोई स्ट्रीम नहीं है। बट उस बच्चे ने कॉमर्स लिया क्यों? दो रीजन से। सर पहला, सर इतना कौन पढ़े 11 12 में। दूसरा, सर मुझे तो एमबीए करनी है। भैया एमबीए जब करनी है तो कंप्लीट किससे करना है?
आप बैंकिंग की जॉब देख लो, मैक्सिमम बैंकिंग की जॉब में बेचारा ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाला बच्चा सोचता है इस पे मेरा हक है, एटलीस्ट इस पे तो मेरा हक है। बाजी कौन मार जाता है? साइंस का बच्चा, बैकग्राउंड, अगेंस्ट सिंपल रीजन। ये मैं नहीं कहता, आप कहीं के भी 10 सालों का रिजल्ट, आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज करने आ गए हैं, आप कोई अच्छा ढंग का टूल यूज करो, 10 सालों के आपको रिजल्ट मिलेंगे, बैकग्राउंड में उसको और रिसर्च करो, प्रॉम्प्ट देते जाओ, आपके पास इतने अच्छे चांसेस आते रहेंगे, यू वुड बी सरप्राइज कि हम क्या सोच रहे थे। सो द पॉइंट इज, प्रॉब्लम इज नॉट विद द स्ट्रीम्स, द प्रॉब्लम इज विद आर ओन। हम होमवर्क करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बच्चों को एक स्टोरी सुना रहा था, अब ध्यान सुनना। एक बच्चा था जेनेसिस का, वो उसने एनडीए के, उसने ना, उसका टारगेट था इंडियन एयरफोर्स। अब ध्यान सुनना, बहुत रियल स्टोरी। उसने, उसका टारगेट था इंडियन एयरफोर्स क्रैक करना। उसने, वो 10th में मेरे हमारे साथ पढ़ता था। उसको मैंने, वो मुझसे पूछने आया, सर मुझे इंडियन एयर, कुछ नहीं पता था बेचारे को, बस उसको ये पता था मुझे एयरफोर्स में जाना है। मैंने कहा, कहता सर मैं क्या लूँ? मैंने कहा तू नॉर्मल ले, बिकॉज तेरे को एनडी का एग्जाम देना है। ठीक है, उसने मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि उसको ये लगा मैं नॉन मेडिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि जेनेसिस में हम मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ाते हैं। चलो, उसने कहीं और से गाइडेंस ली। गाइडेंस लेने के बाद उसने 11 12 में कॉमर्स ले लिया। ध्यान समझना, तो कॉमर्स ले लिया। अब पौने 2 साल बाद 11th खत्म होगी, 12th खत्म होगी, 12th के एंड में ही केम बैक टू मी एंड ही वाज क्राइंग, लिटरली क्राइंग। आप समझिए, ही वाज क्राइंग एंड ही सेड सर, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मेरा करियर खराब हो गया। आई सेड क्यों? ही सेड सर मैंने एनडीए, मैंने कॉमर्स ले लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप, मैंने तेरे को क्या बोला था, तू क्या करना चाहता है? एयरफोर्स। तो और को मैंने कौन सी स्ट्रीम बोली थी? नॉन मेड। अब आप सर, आप एज अ पेरेंट आप समझिए, एनडीए की वेबसाइट पे ये क्लियर लिखा है कि आप ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा और नॉन मेडिकल बच्चा जिसके पास मैथ्स है, वो एनडीए का पेपर दे सकता है। बिल्कुल ठीक है, उसको भी किसी ने ये गाइड किया होगा। लेकिन एक और चीज लिखी है कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो या इंडियन नेवी में, अपार्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर आप इन दोनों में जाना चाहते हो, एयरफोर्स और नेवी की भी ऑप्शन अपने पास ओपन रखना चाहते हो, तो आपको फिजिक्स आपका एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 11 12th में। यही सोच के मैंने उसको नॉन मेडिकल बोला था। और कॉमर्स वाले बच्चे के पास फिजिक्स नहीं होता, तो अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा एनडीए क्रैक करने के बाद भी एयरफोर्स में प्रोफेशन नहीं बना पा रहा, बिकॉज उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। अब ये किसकी गलती है? ये बच्चे की गलती हुई टू एन एक्सटेंट, कि उसने पढ़ाई इन टर्म्स ऑफ मेहनत करी, बट द लैडर वॉज लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। The ladder was absolutely leaning against the wrong wall. तो इट इज वेरी, देखो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत ध्यान से चूज करें कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। बिकॉज जब हमें ये पता, हमारे पीछे ना रीजंस होने चाहिए, और रीजंस रिसर्च से आते हैं, हवा में बैठ के नहीं आएंगे। मतलब मैं कि मेरे सर ऑफिस में एक कुलीग है, उसके बच्चे ने ये किया था। मैं फेड अप हो चुका हूँ ये कहानियां सुन सुन के, बच्चों की और पेरेंट्स। सर वो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, इनके सर इसके ताया जी के बच्चे ने ये किया था। अरे यार बस कर दो, ताया पाया चाचे यार, पड़ोस अड़ोस बंद कर दो यार, बच्चे को समझो। हर बच्चे की अपनी जर्नी, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है, हर बच्चे की अपनी गेम बनेगी। और वो गेम वो तब सॉलिड प्ले कर पाएगा जब वो इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है। अगर वो इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे काम नहीं कर रहा तो फिर, अब वो मैंने आपको दो लड़कियों का एग्जांपल जहां से आज का सेशन शुरू किया, इतनी मेहनत करी उन बच्चों ने, क्यों कर पा रही थी? बिकॉज यहाँ क्लियरिटी थी कि क्यों कर रही है। मैं ये संडे को सेशन, 8 घंटे का भी सेशन आप लोगों के साथ मैं कर सकता हूँ बिना टायर्ड। रीजन, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी है। ये बहुत क्लोज है, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ विद ऑल ऑफ यू इज वेरी क्लोज टू माई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इन लाइफ, टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक राइट डिसीजंस। एंड रही बात मतलब, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि अब 11 12 की अगर मैं बात करूं, सो मैं थोड़ा सा अपना बता देते हैं व्हाट वी वुड डू। हम 11 12 में दो टाइप के बैचेस बनाते हैं। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस इज लास्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड देन आई टेक योर डाउट्स। एनी डाउट्स, ओपन डाउट्स आप ले लेना। हम 11 12 में दो टाइप के बैचेस बनाते हैं। वन इज अ कॉम्पिटेटिव बैच, वन इज अ नॉन कॉम्पिटेटिव बैच। व्हेन आई से अ कॉम्पिटेटिव बैच, अब मैं देन आई विल एक्सप्लेन द स्टेट कोटा सिस्टम, कि कौन से जगह से स्कूलिंग करने के बेनिफिट क्या होंगे, एंड बिकॉज ये अब सब कुछ लिंक्ड है। ठीक है, अ कॉम्पिटेटिव बैच एंड अ नॉन कॉम्पिटेटिव बैच। कॉम्पिटेटिव बैच में क्या होगा कि विल टॉक अबाउट जेई नीट फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। एंड नॉन कॉम्पिटेटिव बैच में क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी एंड द सीबीएसई,
एंड वी विल नॉट बी फोकसिंग ऑन द जे एन नीट इन दोज बैचेस बिकॉज उनका रूट अलग है, ठीक है। नाउ जो बैच सुबह वाला होगा, 9 to 2 वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 9 to 2 सुबह बैच होगा। वी विल टेक केयर ऑफ द स्कूल एडमिशन, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, नाउ यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। 9 से 2 वाला स्कूल का बैच होगा। बच्चा जेनेसिस 5 दिन आएगा हफ्ते में, क्लासेस लगाएगा, हफ्ते में एक दिन स्कूल जाएगा, और वो उस दिन पढ़ाई स्कूल में प्रैक्टिकल्स और इंग्लिश करवाएंगे। ना यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स आएंगे, मैं पहले क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है। और जो शाम वाला बैच होगा वो 3 to 6 होगा, एवरी डे होगा, वो 6 days अ वीक है, और ये 5 days अ वीक है। और वो नंबर ऑफ आवर्स बराबर इसलिए आ जाएंगे बिकॉज जो 3 to 6 शाम वाला बैच होगा उसके टेस्ट के टाइमिंग्स अलग होंगे, वो एक्स्ट्रा टाइमिंग होंगे, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज टीचिंग वाइज बैचेस का आवर सेम होंगे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे मुझे स्कूलिंग का समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें मेच्योरली डिसीजन लेना है, ठीक है। पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुड आई चूज अ डमी स्कूल, शुड आई चूज अ रेगुलर स्कूल? दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। अब आप थोड़ा सा दिल को मजबूत करके बैठेंगे, ठीक है, और मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा विद नंबर्स। हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टूडेंट एक्स, दिस इज स्टूडेंट एक्स, एंड प्रॉब्ली दिस इज स्टूडेंट वाई, ठीक है। ये स्टूडेंट, एक वाइट है स्टूडेंट, एक रेड स्टूडेंट, क्लियर, ठीक है ना। स्टूडेंट एक्स जो है, ये रोज सुबह स्कूल जाता है, आप समझिए, रोज सुबह स्कूल जाता है, जैसे जैसे 10 तक जाता है, रोज सुबह 8 बजे, 8:30 बजे चंडीगढ़, मतलब चलो वो मैं स्कूल कहाँ जाएगा वो देखते हैं। वो रोज सुबह स्कूल जाता है, और वो दोपहर को घर आता है, उसके बाद वो कोचिंग भागता है। तो 2-2:30 बजे घर आया, जैसे अभी करते हैं बच्चे ज़्यादातर, आप देखिए 10th में, फिर कोचिंग भागते हैं, फिर वो कोचिंग से घर आते हैं, अगले दिन सेम रूटीन होता है। दिस इज रूटीन नंबर 1। दिस इज सेकेंड स्टूडेंट, इसने सुबह जेनेसिस पर 9 to 2 क्लासेस लगाई, स्कूल की तरह ही सुबह, बट स्कूल की बजाय बस उसने हमारे पास आ गया। 2 बजे वो फ्री हुआ, 2:30 बजे घर पहुंच गया। 2:30 से लेके 12:30, 1 o'clock तक हम 10 घंटे मान लें, मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मिनिमम 50% टाइम पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी करेगा। बिकॉज अगर मेरा बच्चा, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है, अगर वो 50% टाइम पढ़ता है तो आराम से उसके 5 घंटे निकल जाएंगे पढ़ने के, विदाउट एनी हेक्टिक शेड्यूल, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, एंड ही और शी विल स्टिल गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एंड मेंटल रिलैक्सेशन। आप समझ रहे हैं बात, ये मैं क्या कह रहा हूँ? अब आप खुद सोचो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मन में आंसर करना है इसका। दोनों का टारगेट सेम था, दोनों ने मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है 11th 12th के बाद, दोनों का टारगेट सेम था, दोनों का आईक्यू सेम था। किस बच्चे की प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग सक्सेस आफ्टर 2 years विल बी मोर, दिस और दिस? आपने मुझे आंसर नहीं देना। एक बच्चा जो रोज 5-5.5 घंटे आराम से पढ़ पा रहा है, उसके साथ उसको अपने लिए मेंटल टाइम भी मिल रहा है, वो हॉबी क्लास भी जा सकता है, मे बी वॉक कर सकता है, जिम जा सकता है, भागदौड़ नहीं है, भागदौड़ है, पढ़ाई की भागदौड़ है, फालतू की भागदौड़। और एक बच्चा जो बेचारा सुबह से मजदूर की तरह स्कूल गया हुआ, मैं स्कूल की इंपॉर्टेंस मैं कम नहीं कर रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे अपने बच्चे के टारगेट के हिसाब से गेम चूज करनी है। मैंने आपको बारी बारी बोल रहा हूँ, मुझे ये चूज करना है कि मेरा बच्चा किस चीज के लिए बना है, मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, मुझे उसको रूटीन वो देना है। अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर मुझे बच्चे ने क्रैक करना है, मैं नाम बताता हूँ, जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, एनडीए क्रैक करना है, ठीक है, सीयूईटी इज अगेन अ कॉमन एग्जाम अगर मैं बात करूं, तो एक्सपेक्टिंग टू देम टू क्रैक इट विदाउट 5 hours ऑफ सेल्फ स्टडी एवरी डे, आई कैन राइट इट इन रिटन, आई कैन गिव यू दिस इन रिटन, आई एम टेलिंग यू, अनलेस एंड अंटिल द किड इज जीनियस, नहीं हो पाएगा। ये जो बच्चियों को मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताई, दे वर पुट बिकॉज दे वर एवरेज, सो दे वर पुटिंग एन एफर्ट ऑफ 9-10 hours, 11 hours, 10 hours एवरी डे। नीट इज टफ, ठीक है, कंपटीशन बहुत है, बट आई गिव वेरी सिंपल एग्जांपल। मतलब एक मतलब जो हमारे टॉपर्स बैच है बाय 11th में, जो इनके सीनियर बच्चे हैं, जो लास्ट ईयर रैंक 1 वाला बच्चा भी है, नीव गुप्ता, ही इज ऑल्सो विद अस, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। ही इज ऑल्सो पुटिंग, ही हैज टू, ही इज नॉट पुटिंग, कहता है सर मुझे मिनिमम 8 घंटे, 8.5 घंटे मुझे रोज पढ़ना पड़ रहा है, तब जाके मैं कोप अप कर पा रहा हूँ जो हमारे बैच में जिस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है एट जेनेसिस।
सो अगर किसी को भी, मैंने तभी बोला मार्क्स जो 10 तक आ रहे हैं उसको 11 12 से बिल्कुल इंडिकेट मत करना। अगर मेरा गेम है, अगर मेरा टारगेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो मुझे 5 घंटे 5.5 घंटे मिनिमम पढ़ना है, मिनिमम। अगर मेरा टारगेट साइंस लेके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरा टारगेट साइंस लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक मेडिकल नॉन मेडिकल के कई बच्चों को सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं सर इंजीनियर नहीं बनना है। क्लियर है, बिल्कुल ठीक बात है, मत बनो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बिकॉज मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 3 टॉप करियर प्रोफेशन निकलेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशन निकलने वाले हैं। ठीक है, वो दो दो सब्जेक्ट्स पे चलते हैं ये प्रोफेशंस, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। मैंने ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले एस्पिरेंट्स को भी क्लियर बोला कि भाई हाथ जुड़वा ले, स्ट्रीम कॉमर्स ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी कर, ह्यूमैनिटीज ले ले, मैथ्स मत छोड़ दियो, एडिशनल जरूर ले लेना भाई, because everything is going to be around these 4 5 things in the future. So coming back, so अब क्या डमी स्कूल चूज करना एथिकल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको फिर बोला, यहाँ पे हम एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आई टेल यू मैं एथिक्स की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एथिक्स के चक्कर, मैं ये नहीं कह रहा हम इलीगल कर रहे हैं कुछ, एथिक्स के चक्रों में मेरे बच्चे का अगर करियर खराब हो गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर मेरे बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अच्छा एग्जाम क्रैक कर लेगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग रॉन्ग है। अब आप खुद देख लो, अभी यही रूटीन चल रहा है बच्चे का, सुबह स्कूल जाता है, शाम को जेने से जाता है, यस और नो? क्या कोई भी बच्चा कंसिस्टेंटली 5 6 घंटे रोज दे सकता है? कंसिस्टेंटली? आप खुद सोचिए। नहीं दे सकता। एक दिन दे देगा, रात को लेट सो जाएगा, सुबह जल्दी, 2 दिन बाद एग्जॉस्ट। हमें 2 साल की प्लानिंग करके चलना है। वी कैन नॉट बी हैविंग अ शॉर्ट टर्म, आई वुड से कि हाँ यार क्यों नहीं कर लेगा सर। डमी स्कूल को समझना जरूरी है, गलत नहीं है। अगर हाँ, गलत कब, मैंने बच्चों को भी समझाया है कि यार अगर तुम शाम वाला बैच ले लो फॉर एग्जाम्पल, विच इज एक गुड बैच, बट तुम अगर स्कूल डमी ले लिया और तुम शाम वाले बैच में आ रहे हो, तो तुम पूरे दिन वेले हो, तो काम खराब हो जाएगा, बिकॉज देन यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू, देन तुम मोबाइल चलाओगे, गेम में खेलोगे, गेड़िया मारोगे, देन इट्स रॉन्ग बिकॉज द रूटीन इज मिसिंग। तो सुबह वाले बैच में नथिंग हैज चेंज, अभी बच्चा स्कूल जा रहा है, वो हमारे पास आ जाएगा, या जहाँ जो मतलब वट एवर इज गोइंग टू हैपन। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब यूटी और ये हरियाणा कोटा सिस्टम, यूटी कोटा सिस्टम क्या कहता है स्कूलिंग का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं 1 मिनट में पहले कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों को बताया था, बिकॉज उनके लिए बहुत सिंपल है। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज जिसने लेना है, ध्यान सुनेंगे आप, जिसके भी बच्चे साइंस की तरफ नहीं जाना चाहते, तो और हम चाहते हैं कि उसको 12th के बाद यहाँ पे डीएवी कॉलेज, एसडी कॉलेज, एमसीएम गर्ल्स के लिए जो, या पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं, उसके अंदर 85% सीट्स आर रिजर्व्ड। आई रिपीट, 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दैट स्टूडेंट जो 11 12 चंडीगढ़ से करे। ये कॉमर्स ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा हूँ। आई रिपीट, जो बच्चा कॉमर्स 11 12 या ह्यूमैनिटीज 11 12 चंडीगढ़ से करेगा, उसके लिए 85% सीट्स विल बी रिजर्व इन ऑल दीज कॉलेजेस 12th के बाद। मतलब अगर टोटल कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो 85 विल बी गिवन टू द चंडीगढ़ स्कूलिंग स्टूडेंट्स, 15 विल के लिए compete करेंगे ऑल इंडिया रैंक्स पे बच्चे, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे या सीयूटी के बेसिस पे। दैट्स नंबर वन, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए। इसके अलावा एक एग्जाम होता है चारों स्ट्रीम्स में, कॉमर्स में भी, ह्यूमैनिटीज में भी, मेडिकल में भी, नॉन मेडिकल में भी, जो इस टाइम पे नंबर 2 एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में, नीट के बाद, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि चारों स्ट्रीम्स के बच्चे देते हैं। वी कॉल दैट एग्जाम, गवर्नमेंट कॉल दैट एग्जाम एज सीयूईटी। सीयूईटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। जितने भी बच्चों ने किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मोस्टली द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में है, वो सीयूईटी का परसेंटाइल का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। सीयूईटी, इसके मैंने अपने फॉर्म में भी डिटेल, जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट, उसमें भी आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। सीयूईटी में पेपर क्या आएगा ये आपकी स्ट्रीम पे डिपेंड करता है। जैसे अगर एक बच्चा, ध्यान समझेंगे, अगर एक बच्चा कॉमर्स का सीयूईटी का एग्जाम देता है, तो वो अपने सब्जेक्ट चूज करेगा, लाइक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, डिपेंडिंग कौन से चूज करता है। अगर एक नॉन मेडिकल का बच्चा जिसने बीएससी करनी है, वो सीयूईटी देगा, क्योंकि वो जेई नहीं देगा, उसने अगर सीयूईटी का एग्जाम देना है, देन ही और शी विल चूज सब्जेक्ट लाइक मे बी फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें उसका इंक्लूजन है। सेम इज फॉर ह्यूमैनिटी, सेम इज फॉर मेडिकल। सीयूईटी इज फॉर एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया।
पहले क्या होता था, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चों को बेचारों को कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता था, तो इट वाज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ 12th क्लास मेरिट। अब सब कुछ चेंज हो गया, अपार्ट फ्रॉम द 12th क्लास मेरिट दे हैव एडेड वन मोर कि एग्जाम होगा, CUT इज द एग्जाम, जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया नीट से नेक्स्ट एग्जाम वही है। नीट वॉज 23 लाख लास्ट ईयर, इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग 28 लाख। सो उससे कम है, 23 लाख से कम था। मतलब और लेकिन अभी CUT को होते सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो तीसरी बार होगा, तीसरी या चौथी बार होगा। So उस तरीके से इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग एग्जाम इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, CUET। नाउ कमिंग बैक टू द नॉन मेडिकल कोटा, ध्यान सुनेंगे। अगर मेरा बच्चा 11th 12th हरियाणा से कर रहा है, हरियाणा मीन्स पंचकुला के स्कूल्स, पंजाब के स्कूल से कर रहा है, लाइक पीर मशल्ला में कुछ स्कूल या डकोली या जरकपुर में कुछ स्कूल से कर रहा है, बट उसको चाहिए, अगर उसने इंजीनियरिंग करनी है, पहले इंजीनियरिंग का बताता हूँ फिर नॉन इंजीनियरिंग का। अगर उसने इंजीनियरिंग करनी है, अब अगर टारगेट IIT है, तो कोई कोटा मैटर नहीं करता। IITs डू नॉट हैव एनी रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट कोटास। तो मैटर क्या करेगा, आपके ऑल इंडिया रैंक जो JEE एडवांस में आएगा। अगर लेकिन हम IIT के अलावा वी हैव टू हैव अदर टारगेट्स आल्सो। जो चंडीगढ़ में जो नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है दैट इज पेक, वी ऑल नो दैट, पेक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। उसमें 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स जो 11th 12th चंडीगढ़ से करेंगे। चंडीगढ़ से करने का मतलब, फॉर एग्जांपल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जो हम जो जिनको हम जेनेसिस में कंटिन्यू कराएंगे करेंगे जिनके साथ, उनकी हम लोग जो नॉन अटेंडिंग स्कूल की एडमिशन है जो हम आपको गाइड करेंगे, वो विल बी ना चंडीगढ़ स्कूल। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, हम चाहते हैं ऑब्वियसली जिनका टारगेट IIT तो रही, बट वी शुड हैव एन ऑप्शन जहां पे सेफ थोड़ा चलना है, बिकॉज पेक में 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर चंडीगढ़ स्टूडेंट्स। पेक के बाद चंडीगढ़ में एक और कॉलेज है जिसका नाम है CCET, 26 में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसमें 85% सीट्स 11th 12th की रिजर्व है फॉर चंडीगढ़ स्टूडेंट्स। CCET 26 सेक्टर में जो गवर्नमेंट कॉलेज। देन चंडीगढ़ में एक और कॉलेज है जिसमें इंजीनियरिंग होती है, जो रिप्यूटेड कॉलेज, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो UIET है। आप कौन कौन थक गए, आपको ये मुझसे पूछना चाहिए, ठीक है। UIET, UIET इज अ कॉलेज जहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग होती है, जिसका कैंपस 25 में है। आई रिपीट, उसमें कोई कोटा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है दैट वहां पे भी कोटा है। UIT पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई कोटा नहीं है, स्टेट कोटा नहीं है। तो कई आपको शायद मिसगाइड कर दें लोग, वो मिसगाइड होना नहीं है। पर पेक में कोटा है, CCT में कोटा है, UIT में कोटा नहीं है। ये क्लियर हुआ। अब अगर मेरे बच्चे ने इंजीनियरिंग नहीं करनी और लेना नॉन मेडिकल है, ठीक है, क्योंकि करियर ऑप्शंस बहुत दिख रही है मुझे आज की डेट में, तो भी मुझे चंडीगढ़ से स्कूलिंग करने का बेनिफिट होगा, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज फॉर दैट रीजन, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि मुझे वो जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट था, मुझे BSc करनी है, कुछ और करना है, ग्रेजुएशन करनी है, तो 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट जो 11th 12th चंडीगढ़ से करेंगे। अगर मेरे यहाँ तक क्लियर है, कुछ पूछना है आपने यहाँ तक? आप अपने डाउट्स आई थिंक बहुत सारे पूछने वाले, मुझे लग रहा है मैं डर रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है पेरेंट्स आर वेटिंग टू एक्सप्लोर कि भैया कब से बोली जा रहा है, अब हमें बोलने दे। ठीक है। सो ग्रेट। सो अब आता है मेडिकल का। मेडिकल में बहुत सिंपल है। अगर मेरे बच्चे को नीट देना है, नीट विच इज फॉर मेडिकल एंट्रेंस, तो उसको 11th 12th वहीं से, ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। मेडिकल वाले एस्पिरेंट को थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, थोड़ा ट्रिकी है समझने में, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो ये कहता है, मेडिकल का कोटा, कि जहां से 10th होनी चाहिए वहीं से 11th 12th होगी, तो आप वहां के MBBS के कोटे की सीट्स के लिए वैलिड हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने 10th करी है भवन विद्यालय से या जेवियर से या लिटिल फ्लावर से, अब वो स्कूल आ गया मेरा हरियाणा में। अब अगर वो 11th 12th चंडीगढ़ चला जाता है, मेडिकल का बच्चे की बात करो, 11th 12th चंडीगढ़ से करने जाता है, तो जो चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है विच इज GMCH 32, नीट UG के लिए। UG मतलब अंडर ग्रेजुएशन, नीट PG मतलब जहां पे PGI में भी सीट्स होती हैं, बट हम नीट UG की बात करें, MBBS की। उस केस में, क्योंकि मेरे बच्चे की 11th 12th चंडीगढ़ से है लेकिन 10th हरियाणा से थी या पंजाब से थी, उस बच्चे को GMCH 32 में रिजर्वेशन कोटा नहीं मिल सकता। अब वो हार्ट ब्रेक हो गया अगर किसी का हो गया, आई रिपीट, वो कोटे के लिए वो अब एलिजिबल नहीं है।
तो जिनको, तो अब वो कोटा कैसे मिलेगा? वो नहीं मिल सकता। वो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी 10th और 11th 12th चंडीगढ़ से है स्कूलिंग, या जो चंडीगढ़ के डोमिसाइल है जिनके पास। अगर किसी में से आपके पास चंडीगढ़ का डोमिसाइल है, रहने का सर्टिफिकेट है, बेसिकली डोमिसाइल इज रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो उसको वहां का चंडीगढ़ का कोटा मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट? तो जो भी नॉन मेडिकल, सॉरी, जो भी मेडिकल का एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत सिंपल है। ही और शी शुड आइदर कंटिन्यू विद द सेम स्टेट स्कूल जहाँ पे वो 10th 11th 10th करी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है मेडिकल के पेरेंट्स के लिए। अगर किसी मेडिकल के पेरेंट, बच्चा जिसने मेडिकल लेना है, उसके पास अगर डोमिसाइल हरियाणा का है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डोमिसाइल हरियाणा का है, मतलब उसके हरियाणा में रहते 10 साल हो गए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। या डोमिसाइल पंजाब का है, पंजाब में रहते 8 10 साल हो गए, वो आपको स्टेट बाय स्टेट देखना पड़ेगा डोमिसाइल क्राइटेरिया। तो उसको 11th 12th चंडीगढ़ से करने का बेनिफिट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डोमिसाइल के बेसिस पे उसको एमबीबीएस में रिजर्वेशन मिल जाएगी, हरियाणा या पंजाब की। और 11th 12th में खुदा ना खास्ता नीट नहीं क्रैक हुआ, आई रिपीट, खुदा ना खास्ता नीट नहीं क्रैक हुआ, बीएससी करने का मन बन गया, बायोटेक्नोलॉजी चंडीगढ़ से करने का मन बन गया, तो 85% सीट्स के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। तो वी गॉट टू प्ले स्मार्ट, वी हैव टू प्ले एब्सोल्युटली क्रेजीली स्मार्ट, तब जाके बात बनेगी। ठीक है। ना यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, एंड आई 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 एक मिनट, यहां तक आपने कुछ पूछना है? मतलब बहुत कुछ पूछना होगा। द मैसेजेस आर कमिंग ऑन माई डायरेक्ट मैसेज ऑन, मैं साथ साथ पढ़ के आंसर करूंगा वो आपके लिए, देन आई ओपन द राउंड ऑल्सो। पहले मुझे चैट वाले मैसेजेस आंसर करने दीजिए। एक पेरेंट पूछ रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, गुड मैम, आफ्टरनून। मैम मैं एक मिनट ये वाले आंसर कर दूं, चैट वाले फिर मैं आपका डाउट लेता हूँ। श्योर सर। एक पेरेंट कह रहे हैं कि ओके, द पेरेंट से साहिल जी, विल जेनेसिस आल्सो ट्रेन फॉर सीबीएसई और ओनली कंपटीशन? मैम मैंने अभी क्लियर किया था, जेनेसिस में हम सीबीएसई इक्वल पढ़ाते हैं। जो कंपटीशन वाले बैचेस होते हैं उसमें भी सीबीएसई जरूर पढ़ाया जाता है, बिकॉज एनसीईआरटी एक बुक होती है सीबीएसई में, उसके बिना आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ये एक शो ऑफ बन गया है दैट कॉम्पिटेटिव अलग है, एनसीईआरटी इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी एनसीईआरटी थरो है विद राइट माइंडसेट एंड राइट, वो आराम से कंपटीशन निकाल देगा। सेकंड इज, अ पेरेंट से, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल ऑफ यू, काफी पेरेंट के दिमाग में होगा, इसको मैं क्लैरिफाई बहुत दिल से करूंगा। पेरेंट सेज दैट, सर आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द क्लास 9th and 10th जो जेनेसिस में की, शुड व्हाई शुड वी कंटिन्यू, और शुड वी कंटिन्यू इन 11th 12th विद जेनेसिस? आई थिंक आपने आंसर खुद दे दिया है, बट मैं फिर भी क्लैरिफाई करता हूँ। आप खुद कह रहे हो कि यू वर सेटिस्फाइड विद 9th 10th कंप्लीटली। सो मैं अब यहाँ पे बहुत दिल से एक चीज कवर करूंगा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली दिल से हार्ट हार्ट टू हार्ट। एक चीज समझते हैं, ये बच्चे भी मुझसे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो लेट मी क्लैरिफाई इट फॉर यू। जब हमने 11th 12th में ये देखना है कि हमने जेनेसिस कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, मैं आपको एक सिंपल सा एक नंबर बताता हूँ। जो नंबर वन पैरामीटर जो आपको देखना है, सिलेक्शन रेशो। ध्यान सुनेंगे सारे पेरेंट्स बहुत, ठीक है? सिलेक्शन रेशो इज number of students that end up cracking a good college from a particular institute with respect to the total number of students in that 12th, और जब 12th से पास हो गए। जो मैंने रिसर्च की, और मैं आपको खुला रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप अपनी रिसर्च जरूर करना, हमारा जो जेनेसिस का सिलेक्शन रेशियो इज अराउंड 52%। 52%, विच मीन्स अगर हम एक बैच में या 25 बच्चे पढ़ाते हैं 11th में, अप्रोक्सीमेटली 12-13 सिलेक्शन हम उस बैच में से दे देते हैं। दिस इज हमारा सिलेक्शन रेट। जो इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और ये आप कहीं पे भी पूछ लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑल इंडिया सिलेक्शन रेशियो इज नॉट मोर देन 10%। आई रिपीट, इज नॉट मोर देन 10%। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं रैंक 1 की फोटो देख के, रैंक 2 की फोटो देख के, बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूट में उस एक बैच में 80 बच्चा था तो वो निकला, पूरे इंस्टीट्यूट में 500 बच्चा था, 8-10 बच्चा निकला। ये आपको देखना है, ये मैं नहीं दिखाऊंगा। अगेन,
आपको ये देखना है आपका बच्चा कौन सी सीढ़ी चढ़े। मैंने आपको पूरे सेशन में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, और आप प्लीज उसको जरूर वेरीफाई करना। सो मैम, आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, दैट आपको सिलेक्शन रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, आई थिंक आप मैम सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं। मैम आई 11 12 मैं अभी आंसर करता हूँ, पहले मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। सेकेंड इज, मुझे ये देखना है इस सिलेक्शन रेशो के बाद, मुझे एक और चीज देखनी है। मेरा बच्चा, मैंने ना जब हम लास्ट ईयर का सेशन कर रहे थे ना, ध्यान सुनना, मैंने आपको क्यों मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था पेरेंट्स आप एज होपफुल आप सुनेंगे। we had 19 students, 19 students who rejoined Genesis in 2 months this year from different institutes of Sector 14 within 2 months. And most of them were students who were scoring more than 92, 93%, 94%. They scored in 10th board examinations, and that too from even an ICSE background. And for a very simple reason, they felt sir हम बिल्कुल गुम गए हैं, वी आर एब्सोल्युटली, वी हम हमें ऐसा लगा हम जंगल में आ गए हैं, दैट वी आर लॉस्ट इन द जंगल। सो ये मैं देखो, मैं कभी भी यहाँ मैंने कभी नहीं बोला कि जेनेसिस बेस्ट है, सिर्फ मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा वो। आई थिंक आई हैव ऑलवेज लेट माय हार्ड वर्क एंड द आई वुड से द डेडिकेशन डू द टॉकिंग, बट दैट इज फॉर यू टू डू योर ओन रिसर्च। एंड आई ऑलवेज से टू द पेरेंट्स एंड विद ऑल माय हार्ट, अगर बच्चा सेटिस्फाइड है ना, तो कभी चेंज मत करो। अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो कभी कंटिन्यू मत करो। सब कुछ यहाँ छुपा हुआ है। तो हमें लगता है हमारा बच्चा बेवकूफ, बच्चा बेवकूफ नहीं है, बच्चा अपने करियर से कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड है, उसको लगता है ये लोग मेहनत करते हैं, हम पे ध्यान देते हैं, हमारे पे ध्यान दिया जाता है, द इनिशिएटिव्स दे टेक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ ऑल्सो, लाइक वट एवर वी डू, सेमिनार ट्रिप्स, वट एवर सेलिब्रेशन, नॉर्मल इवेंट जो हम सेलिब्रेट करते हैं, अ सेशन लाइक दिस, वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, then they have a lot of trust. But अगर satisfaction है, never risk it, never risk of losing it. अगर satisfaction नहीं है, never risk of continuing. This is what I always say to the parents. One of the parent is asking now, give me a minute, ma'am, 11 12th में it is always better to choose a CBSE school, because इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं, they are aligned more on the CBSE perspective. So it is ICSE वाले जो पेरेंट्स है, ये उनका ही डाउट है। It's always better to shift to a CBSE school in this whatever in 11 12th. This is okay. Perfect. Next question is that ma'am, इसके लिए I think आप individually we can discuss, because अभी this is not about the individual performance of the child. This is about the group performance. So यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको, या अभी यहाँ तक कोई डाउट आपका? मैम एक पेरेंट डाउट पूछ रहे थे बीच में, जिनको मैंने कहा था मैं बाद में लेता हूँ। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि जैसे चंडीगढ़ में सिर्फ अगर 32 ही है मेडिकल की एडमिशन के लिए, तो फिर 85% कोटा, मतलब एक सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट के लिए हम वरी नहीं करना चाहिए? मैम दैट अगेन डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। अगर जीएमसी 32 क्रैक करना है, तो इस बार का अगर हम रिजल्ट छोड़ दें नीट में, बिकॉज नीट वॉज अ स्कैम दिस ईयर, आपको हमें 720 में से समवेयर अराउंड सेफ साइड, मतलब वी हैड 2 3 किड्स हु क्रैक्ड अप जीएमसी 32 दिस ईयर ऑल्सो, बट उनका तो छोड़ दो क्योंकि इस बार पागलपंती हुई है। बट जर्नी अराउंड मैम सेफ साइड विद यूटी कोटा में अराउंड 600 स्कोर लाना पड़ेगा, 580 590 570, आउट ऑफ 720 600 भी लाना पड़ सकता है नीट में। तो अगर हमें लग रहा है हमारा बच्चा वो कैपेबिलिटी रखता है, यू कैन टॉक टू अस अबाउट इट, हम आपको जेन्युइन गाइड करेंगे। तो वी शुड take a chance of GMCH 32, because nothing beats that kind of a college. It's all India rank 7 in MBBS. बट अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार, इतना शायद दम नहीं है, बट हमें MB डॉक्टर बनना है, देन वी कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ सम अदर स्टेट ऑल्सो। बट मैम अगर उसकी 10th चंडीगढ़ से आप ऑलरेडी करा रहे हो, यहाँ पे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप 10th चंडीगढ़ से करा रहे हो, तो अब 11 12 उसकी अगर आप हरियाणा से भी कराओगे, तो भी उसको कोटा तो नहीं मिलेगा MBBS का। फिर आपको कोटा मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। अगर आप पंजाब में रहते हो तो आपको पंजाब कोटा मिलेगा, अगर आप हरियाणा में रहते हो आपको हरियाणा मिलेगा। तो आप अपना चंडीगढ़ का कंटिन्यू कर लो, चंडीगढ़ के डमी स्कूल में हम करवा, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी हम करवा देंगे। जो भी मतलब विल टेल यू द टाई अप्स व्हिच वी हैव इन डिफरेंट स्टेट्स, हरियाणा में, पंजाब में एंड चंडीगढ़ में, जो हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, 20 20 25 25 सीट्स पर स्टेट। So in that case, ma'am, you can continue with Chandigarh and take the quota of this on the MBBS on the basis of domicile. अभी जैसे हम पंजाब की रेजिडेंट है, तो इन केस सपोज करो 32 वाले में नहीं होती है एडमिशन, मैम कितने तो साल हो गए पंजाब पंजाब को पंजाब में रहते हुए, कितने साल हो गए?
हम पंजाब में ही रह रहे हैं सर शुरू से ही, मतलब लगा लो तो आप। तो मैम आप 11 12 चंडीगढ़ में डमी स्कूल से करा दो एंड फिर पंजाब के जो कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस, उसमें 85% कोटा होगा जी मैम, जी मैम, या? जी मैम, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, क्योंकि आप पंजाब के रेजिडेंट हो, डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा आपको। उसके बेसिस पे आपको एमबीबीएस कॉलेजेस में, एमबीबीएस सीट में रिजर्वेशन मिल जाएगी पंजाब कॉलेज। तो वहां पे 85% कोटा मिलता है सर, या 100% होता है पंजाब के, जो मैम पंजाब के कॉलेजेस है? 100 कहीं नहीं होता मैम, इट्स ऑलवेज 50 और 85, वहाँ 85 ओके, वहां पे है। फिर जो पंजाब के रहते हैं उनके लिए 85% होगा? जी मैम, जो पंजाब के रेजिडेंट, इनके पास पंजाब का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, तो आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट यस। इन टाइम बनाना है। वो 2 साल पहले कम से कम बना होना चाहिए, तो आप अच्छा। बनवा लेना उसको टाइम से। ओके, तो अभी बनवा लेना चाहिए मतलब आपके हिसाब अब से? हाँ जी, आपको प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। ओके, दैट विल बी काउंटेड इन आफ्टर, लाइक जैसे 12th का एग्जाम देंगे, 12th के उस समय उसको कंसिडर करेंगे, या उस टाइम फिर लेटेस्ट बनाना पड़ता है? नहीं नहीं मैम, वो कंसिडर होगा, अभी बनाएंगे तो वैलिड रहेगा मैम। ओके, सर राइट। बोर्ड मैटर करता है 11 12 में, सीबीएसई और हरियाणा। ओके, अगर एक क्वेश्चन है कि 11 12 में जो बोर्ड है, कौन सा बोर्ड, मतलब सीबीएसई हरियाणा बोर्ड, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सीबीएसई की तरफ हमें रहना चाहिए। वाई डोंट वांट टू स्विच, आईसीएसई वालों को सीबीएसई में स्विच मार लेना चाहिए, सीबीएसई वालों को सीबीएसई में कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज मोर इंक्लाइंड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टूवर्ड्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। अगर किसी को बिल्कुल ही क्लैरिफिकेशन क्लैरिटी है कि बिल्कुल उसको तगड़ा तगड़ा तरीके से पता है कि मुझे करनी आईआईटी है, मैं ध्यान सुनना, या करना ही नीट है, तो उससे फिर बोर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उससे फिर बोर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोर्ड कुछ भी हो, अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में क्रैक कर लेते हो अच्छे परसेंटाइल से, फिर 11 12 के कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपसे आपका बोर्ड कोई नहीं पूछेगा। इनफैक्ट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे मैंने एक्सट्रीम केसेस भी देखे हैं, बच्चे 11 12 ओपन बोर्ड से करके भी एग्जाम क्रैक करके वहां एडमिशन कॉलेज में आईआईटी वगैरह में ले लेते हैं। ऐसे कुछ केसेस भी होते हैं, बट ये आपके टारगेट पर डिपेंड करेगा कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है। सो यहाँ पे आई वुड कमिंग बैक टू द सेम, हमें ये आपको, सो व्हाट वी वुड डू इज वी विल हैव अ सम ग्रुप सेशन ऑल्सो। अब हमने क्या किया, बच्चों को सेग्रीगेट किया है। अब यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है, वी आर अबाउट टू वाइंड अप द सेशन इन नेक्स्ट 5 7 मिनट्स नाउ। हमने ना बच्चों को सेग्रीगेट किया है। अब यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो बहुत तकड़ी चीज हम क्रिएट कर रहे हैं हर बच्चे के लिए, एंड आई एम पर्सनली डूइंग इट दिस टाइम, और ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इफ यू सी आपको दिखा, मेरी स्क्रीन दिखी? परफेक्ट, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? आप नोट कर दीजिए, मैंने कुछ शेयर किया, स्टूडेंट स्वॉट रिपोर्ट दिख रही है आपको? No, it's not visible. This screen is visible, but your file is not visible. ओके, गिव मी मिनट सर, मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब दिख रही है जी? नहीं दिख रही? नहीं, अब आई। अब आगे थी? ओ यार मैंने आई बंद, बट आपने क्लोज कर दिया। हो गया, मैं भी थक गया, एक मिनट, अब आई? कैन यू सी इट नहीं, नाउ? नो नो, नो वी कैन। सर। ये लास्ट मिनट पे बेइज्जती होनी होती है। रुको, अगर अब नहीं आएगी तो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूँ, लास्ट चांस। अब आई? नो सर। ओके, सो मैं फाइल एक्सप्लेन ओपन कर, नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सो मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड दिस इज फॉर एवरी 10th क्लास स्टूडेंट ऑफ जेनेसिस, and that will also answer why we why it will be great when we if we continue together in 11 12। हम हर बच्चे का एक स्वॉट एनालिसिस प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 पेजर रिपोर्ट, जिसमें बीच में बच्चा होगा, बच्चे का नाम होगा या फोटो होगी, एंड उसको पेज को हम 4 पॉइंट्स, 4 उसमें डिवाइड करेंगे। एंड एक तरफ उसकी स्ट्रेंथ्स होगी, विच वी नो बेस्ड अपॉन वॉट एवर वी एक्सपीरियंस वी हैव, उसकी ताकत क्या है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे हम फिजिकल ताकत की नहीं बात करें, उसकी प्रोफेशनल ताकत की बात करें। देन वो द सेकंड वुड बी इन द वीकनेसेस, जहाँ पे हमें लगता है वो अच्छा कॉलेज क्रैक करने से रुक सकता है। थर्ड इज अपॉर्चुनिटीज, कि उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें लगता है, जो उसको स्ट्रेंथ्स को वो कैसे अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है। एंड लास्ट इज थ्रेट्स, which we strongly believe that can hamper his or her chances to crack a good college and can derail his or her preparation from cracking a good college. So we would, it will take some time, but by the time we'll close this session, मतलब close this session as in जनवरी के अराउंड, जो हमारी लास्ट पीटीएम होगी,
offline PTM. We'll share that report with you individually with all of you. We're making that to help you understand so that we also know हमें सो बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा था, हम आपको ऑफलाइन में आप सबसे मिलूंगा अगेन बेस्ड अपॉन द स्केड्यूल्स फॉर प्रॉब्ली 30 minutes इन अ ग्रुप. सो उस ग्रुप में हमने जो बच्चों को इनवाइट किया होगा पेरेंट्स को, वो उसी बच्चे के लेवल के होंगे जिनका जो वॉट एवर वी बिलीव वॉट वी कैन डू. That would be the last chance where you can interact with me and take your doubts, and we will share our plan even in more detail with you for your child. But my only humble request to all of you is that कि प्लीज गलती करने से पहले हम सोचेंगे, बिकॉज मैं हर साल पेरेंट्स को ये चीज़ें समझाता हूँ, डोंट मेक दिस मिस्टेक, अपने बच्चे को जंगल में मत डालो, गुम जाएगा. कुछ पेरेंट्स बहुत समझदार है, सुन लेते हैं, कुछ जरूर सुनते हैं लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद सुनते हैं, बट देन कुछ ना कुछ वो फाइनेंशियल नुकसान करा के आते हैं, which I would never want you guys to do it because you guys are an important part of this. I think any other doubt you have? Any other doubt you have? Perfect. मैंने एक बार chat. We have still one more message. Not yet. Okay, perfect. Sahil, we have so many doubts. I don't think so you would be able to clear it within 5 minutes. So I would want to meet you and make it clear. Done, sir. आप ऑफिस में कॉल करके टाइम ले लेना. आई थिंक आई वुड लव टू, मतलब ये कुछ दिन आई वुड कीप, मैं हर साल ये कुछ टाइम रखता हूँ पेरेंट्स के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू मेक एनी मिस्टेक्स. एंड आई थिंक इट हैज़ बीन अ लॉन्ग लॉन्ग सेशन. मुझे नहीं पता नहीं लगा 2 घंटे वी हैव स्पेंड टुगेदर. आई थिंक इट्स अप्रॉक्सीमेटली टाइम. मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं करा इतना. यू वर एन अमेजिंग अमेजिंग ऑडियंस. मैं बहुत अच्छा बोल रहा था मुझे पता है, बट यू वर ऑल्सो ऑन अ सीरियस नोट, यू वर एन एब्सोल्यूट अमेजिंग ऑडियंस. द काइंड ऑफ, मैंने अटेंडेंस ड्रॉप होती नहीं देखी पूरे सेशन. एंड I'm so glad that you guys are so involved. आपने मतलब कैसे किया मुझे पता नहीं है. आई होप मतलब वी कैन मेक अ डिफरेंस, बिकॉज मेरा एक ही ड्रीम है टू बी ऑनेस्ट, बच्चे को अच्छे कॉलेज तक लेके जाना. और मैं बच्चों को क्लियर बोलता हूँ, मेरे लिए 10th बहुत छोटा पार्ट है. मेरे लिए जो मेन पार्ट ये है कि तुम अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छा नेटवर्क बनाओ, अच्छी लाइफ. That is something important. On this note, thank you so much for being an amazing audience, and God bless all of you. God bless my students, and jaldi milte hain offline mode mein, and then we'll continue the interaction. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you very much. Sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Namaskar. Thank थैंक यू you, sir. सर जी, Thank थैंक यू you. सर. Okay. Thank you जी. Thank you. Okay, आप sir. मुझे पैसे गूगल पे कर सकते हैं मेरे. Okay.